तो वहीं मैं फिर Good evening. good evening everyone. Actually, A02 batch got the message late, na? So how many of you from A02 weekend batch? I think Arnab, raise your hand, guys. Those who from A02, raise your hand. Those who are from weekend batch, not weekdays batch, weekend batch. वीकेंड बैच के अच्छा एक है Shumanshu. Only one student. Shumanshu, you got message very late. That is why the problem is. Yes, sir. I think that is why many people have been not be able to join. Okay. What I should do? I'm not in that group also. I cannot write. Shumanshu, are you in any group of that where actually you have different group of A02 batch? No, sir. I'm from A04 batch weekend. A04, yes, A04. Okay. Oh, Shaikat, you are from also A04, no? Shaikat? No, sir. A1 batch. अच्छा, A1 batch. Okay, okay. Excuse me, sir.
So I have only one option. I can enable VOD. Okay, guys. So let us start. Last class में हमने बच्चों कहाँ तक किया था? हाँ. Sir, actually, I've sent you one doubt in your WhatsApp. Can you please tell me the solution, or will you Yes, send me? Santika, you have sent it. Just let me check. I'll just discuss right now. Okay, Santika, just 1 second checking. Santika, write something you from sir this, like sir this one, right? Because Okay, sir. Okay, sir. okay, write fast. Can I send it out as well? Yes, 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 you can. Okay, yes, Santika, this one. Okay, guys, the question I'm reading. Better I'm sending in the group. I think I've sent it the question in the group. Just please everyone read. I'm reading this question for A1 batch and A4 batch. A length L, I'm drawing the diagram also. Let me share the screen. Okay, the question is that, guys. This is a length L is flexible tape is tightly. This is flexible tape, guys. Like we have tape tightly wound. It is allowed to unwind as it rolls down as steep incline that makes an angle theta with the horizontal. The upper end of the tape being tacked down and the tape unwinds completely in the time equal to. You have to calculate the time at which tape will unwind. Okay, guys. Tape will unwind in how much time you have to find out. Just do it too. If not able to solve, then I'll discuss this one. How much time it will take to unwind this tape. There's someone in waiting room, like if someone is calling me. Isan, you join. Isan, are you here? Yes. Isan, you are here now? This is a question actually. I have sent it in the group. You have to try this question. Okay, try to.
Okay, guys, tell what you guys will do to solve this question. Okay, guys, tell. Anyone? Okay, guys, see. Are you guys trying, or I should do it for you? Suppose what the mass unwind is any time is dm. Okay, so what the component acting downward, how you calculate dm? Suppose total length of this tape is L, and at any instant I have just assumed that it has some length L minus x unwinded. L minus x length is unwinded at any instant. So what is the mass of this length? So you can say density into volume. Volume I can, or you can say the density into this is rho. I am taking this as mass per unit length, or you can write this rho also as lambda. Okay, but I'm writing rho here, just a symbol. So sometimes this you use lambda, so you can write lambda also. So lambda L minus x is the length. Lambda is mass per unit length. Okay. So you can simply say that this is lambda L minus x into g sine theta, mg sine theta acting downward, na? Minus tension t upward, na? Is equal to mass into acceleration. Mass I can write, sorry, lambda, I'm writing lambda. Is it okay, Santika? Tell me, this equation is fine. Mg sine theta minus t is equal to ma. I have written fine. Where So actually the mass of that rolled one or the flat that one you have written. you tell me what I have written, then I'll tell you. I think the flat portion, like the rolled one, is that above one. And for a rolled one, what you will do? Actually integrate it from where to where? If so, actually these things you got first. This equation is clear or not? Is it okay? Because I have to calculate this time to completely unwind like this, and I have taken this time up to which it has unwind like this, and some portion is remaining. Okay, so equation that I'm writing for what? I will calculate acceleration, and then we can do the things regarding to that. Okay, now one equation I can also write, equation of torque about center of mass. So you can say that this tension T, guys, this tension T, and this is the point. So R is radius, suppose I can say that T into R at a distance X, means when these things I just discussed, into torque is equal to I alpha, na? I'm writing I, which is nothing but equals to what moment of inertia you can take? mr square by 2. This is a type of disc, na? Rolling tape is a type of disc, na? Is it okay? So I can write mr square by 2 L minus x into lambda into r square by 2 mr square into alpha, na? It is fine. I alpha. This r you can cancel out from here. Then you can say that this will be one equation from here. You get T is equal to, you will get half lambda
L minus x into r alpha. Can I write this is linear acceleration A, because you know that for rolling case v is equal to omega r, and differentiating dv by dt is equal to r alpha. Is it okay, Santika? Tell me first. This r alpha I've written A. Now can you substitute Yes. this value of A here to get the expression of suppose you can put the value of tension there. So you can write lambda L minus x g sine theta minus half lambda L minus x into A is equal to lambda L minus x into A. This will be 3 by 2, no? This will be lambda L minus x. Lambda L minus x g sine theta is equal to 3 by 2 L minus x lambda into A, lambda L minus x A, lambda L minus x A cancel. Acceleration you got 2g sine theta by 3. Yes or no? Tell me so. When you got acceleration, can you calculate velocity? V square equal to u square plus 2as. So v is equal to under root 2a acceleration. I'm directly writing 2g sine theta. Oh, sorry, 2g by 3 sine theta. 2g sine theta by 3 into s. I'll take. So you can simply write this as velocity and now time. Time is what? Basically under root, if I am taken as 2h by g, 2s by a. So you can simply put the value of s from here and you get the result expression. Are you getting my point? S and a you can substitute from here. Yes, sir. Okay. So what will be the answer? You can do it. Okay. When you put here, you got the answer. I think this is B is the answer correct. Check it to 3L by, because A will Understand. just, you don't know the answer. Yes, sir. 3L by G sin theta, that is. Yes, that's 3 will go above, 2 to cancel, na 3 will L, this S is L completely, 3L by G sin theta. Okay. Understood now? Yes, sir. Understand. Okay, so this is simple the expression. One more student sent one question to me. I think Ishan, you have sent it, no? Oh, no, Rajdeep. Okay. This is again the question of J means. See, the question actually is sent it in the group, I think. So this question says that you have 2r and r radius, two spherical ball having radius 2r and r, density rho, identical density. Then this is light string, viscous fluid of density sigma. Sigma is greater than rho. This is rho and rho. Sigma is greater than rho. The condition is given. With the rope just taut, the tension in the rope you have to calculate. The tension attain terminal velocity. Achha. This they have given terminal velocity k by 3 pi r cube rho minus sigma into g. You have to find the value of k. This is JEE Mains question, I think. Just try everyone fast. So I that think is some of- tension, not the terminal velocity. Yes. Sir, that is the tension, not the terminal velocity. Which is not the terminal velocity? This expression is terminal velocity. Why tension? So in the question it is written The tension in the rope when no, see, read the next line, guys. Read the next line. Tension you have to calculate when this value will actually tension in the rope where spare attend. Acha, 10. This is sorry. This is the tension given, not terminal velocity, because terminal velocity expression looks like 2 by 9 eta something like that, na? But this is tension given, then value of k of taken. Okay, correct. Just try everyone. So first equation you want to write for this which mass? Tell me.
take any mass, upper mass or lower mass, lower Bob. Then you have to write the equation. Do it fast if you can. So first, if you are writing the equation for this upper mass, so is mg is acting downward, na? Mg is acting downward. Tension also having the tendency to pull it down like this. Now, what is the direction of buoyant force acting on this one? Buoyant force or viscous force in this direction. Fb viscous force in this direction and buoyant force also in this direction. Na? Or viscous force in which direction? Tell me, guys. Yes, sir. Yes. Viscous force in downward. Yes, sir. Downward. Yes. Yes, because this has a tendency to go above. Na? If it is not like that, so viscous force is actually downward. This is not like this. Viscous force is downward again. So Fb in this direction. Only buoyant force is in upward direction. Okay. Now you will write one equation from here. Another equation you can write from this mass, which is you can write mg. This time tension. So that is small m. Tension T, buoyancy B, viscous force Fb. So these two equation you can write from these two equation, that like I'm writing this equation. Let it be mg minus T, sorry, plus T plus Fb minus buoyancy. Because they are not an equal acceleration, it must be 0. Small mg plus Fb minus T minus B is equal to 0. So I can say that key buoyant force will be different because of a radius Fb dash you should write here. Because buoyant force is what? 6 pi eta r minus 6 pi eta r. One radius is 2r into velocity v, and this radius 6 pi eta r into v. Radius is r only. Okay. Now you have mg. Equation all correct now? I've written, just check though. Then you have to just eliminate first. If you just subtract, it is okay. This equation just check though. Then you have to. Yes. Okay, then solve it and tell me the value what is coming. Okay, can you solve this question at home later? Any doubt in this? The student whose name? Just solve this equation. This answer will come. Okay. So
last class what we have done, guys? Tell me. Said that thermal conductivity. Thermal conductivity, I'm continuing. Two more questions are there, which can I link with the chapter of electrostatics? Okay, these two Excuse me, sir. numericals. Yes, what? सर क्लास के लास्ट में जो आपने क्वेश्चन किया था ना वो और एक बार समझा देंगे? देखिए बच्चों, ये क्या है कि आपका क्वेश्चन मैंने ग्रुप पे भेज दिया आंसर, ठीक है ना? नो तो सर, वो जो पहले लास्ट क्लास में आपने जो किया था। अच्छा, लास्ट फ्रस्टम वाला क्वेश्चन। हाँ, वो वाला वो अच्छा इक्वेशन थोड़ा और एक बार समझा देंगे? अच्छा, देखिए ये जो फ्रस्टम वाला क्वेश्चन था, इसमें आपको ये जो इक्वेशन लिखना था आपको, ठीक है ना? ये आपका रेडियस r1 मान लीजिए, ये रेडियस r2 है, और यहाँ पे मैंने कोई स्ट्रिप ऐसा पकड़ा था, इसका रेडियस हमने r ले लिया था, ठीक है ना? ये स्ट्रिप थोड़ा सा ऐसा था r, तो मैंने यहाँ पे एक ट्रायंगल लिया था अंशु ऐसा, ठीक है ना? ये लाइन खींची थी, तो आप बोलोगे ये एक ट्रायंगल है। देखिए मैं नाम देता हूँ ABC और ADE, ये दोनों Yes. सिमिलर ट्रायंगल है क्या अंशु? ये एंगल सेम है, ये Yes. वाला एंगल, तो दोनों सिमिलरिटी हमने प्रूव कर दी थी। तो सिमिलरिटी से मैं ऐसा लिख सकता हूँ क्या, ये लेंथ हमने x ले लिया था, ये टोटल लेंथ l था, तो पहले मैं x बाय l लिखता हूँ, जो कि आपका बेस का रेशियो है। वो ये वाला हाइट क्या हो जाएगा? आप बोलेंगे सर r माइनस r1 होगा, और ये वाला हाइट क्या होगा अंशु? देखिए तो ये टोटल r2 है, Yes, और ये R2 minus r1 r2 माइनस r1 ना। Yes. तो अब अंशु मैंने क्या किया था, इसको इधर मल्टीप्लाई कर दीजिए, तो इसको r2 माइनस r1 इंटू एक्स लिखा था अंशु, डिवाइड बाय l, और प्लस Yes. r1, ये r का एक्सप्रेशन आया था। अब एक काम Okay, करिए, sir. r को आप ना यहाँ पे अंशु एक काम कीजिए, चेक कर लीजिए कि l इज इक्वल टू 0 पे क्या है। जब x इज इक्वल टू 0 पे क्या है, जब x को 0 रखा अंशु तो r इज इक्वल टू r1 है। देखिए x जब 0 है Yes. तो r1 है। जब x की वैल्यू l रखी अंशु आपने, तो देखिए ये है r1 से r1 कट गया, r2 है, तो ये आपका है, ठीक है? दिस इज व्हाई दैट्स एक्सप्रेशन इज r2 माइनस r1 अपॉन l x प्लस r1, ठीक है ना? मैंने दूसरा अच्छा। तरीका बताया था कि स्ट्रेट लाइन है, जो इसका इंटरसेप्ट है बच्चों r1, और स्लोप जब आप देखेंगे बच्चों तो होगा r2 माइनस r1 बाय, क्योंकि देखिए टोटल लेंथ l में स्लोप आ रही है आपकी r2 माइनस r1, तो यूनिट का आपका ये स्लोप है आपका इसका, तो Yes. y इज इक्वल टू m x प्लस c, इंटरसेप्ट है r1, डायरेक्ट यहाँ से भी लिख सकते थे, ठीक है? Okay, sir. Thank you, sir. चलिए अब बच्चों हम लोग बढ़ते हैं नेक्स्ट पार्ट पर। अच्छा, वो क्वेश्चन किसी ने सॉल्व किया, किसी बच्चे ने? क्या वैल्यू है बताओगे? अच्छा चलिए, आप लोग ट्राई कर लीजिएगा, ठीक है? अगर नहीं आएगा तो यू शुड टेल मी। स्टूडेंट किसका डाउट था, रुकिए एक मिनट। विदाउट राजदीप, एक्चुअली हैव यू डन? तो थोड़ा बाकी है। अच्छा एक बार कर लीजिएगा राजदीप, आई थिंक 8/3 के अराउंड आंसर आएगा आपका, ठीक है? एक बार चेक कर लीजिएगा। 8 आ रहा है K का 8 वैल्यू। 8 विल बी द आंसर, ओके। चलिए, तो अब बच्चों हम लोग आज देखते हैं, एक स्फीयर है आपका, ध्यान सुनिएगा, एक अच्छा क्वेश्चन जिससे मैं कैपेसिटेंस चैप्टर को रिलेट करूंगा, एक अच्छा क्वेश्चन थर्मल कंडक्टिविटी का। तो कंडक्शन से रिलेटेड क्वेश्चन है बच्चों। एक r1 रेडियस का एक स्फीयर है, और इसका r2 है रेडियस बच्चों, r2 है। अब इसको टेम्परेचर T1 पे रखा आपने, टेम्परेचर T2 पे रखा बच्चों, और जब T1 इज ग्रेटर देन T2 तो हीट ऐसे रेडिएट होगी बच्चों ना, ऐसे रेडिएट होगी हीट, मतलब हीट की डायरेक्शन फ्लो ये होगी। आपको बताना है बच्चों dq/dt क्या होगा, रेट ऑफ फ्लो ऑफ हीट। दिस आर स्फीयर्स, these are spheres, you have to calculate rate of flow of heat। अच्छे से करना, अच्छा क्वेश्चन है बच्चों, ठीक है ना? इसी से मैं स्फेरिकल कैपेसिटर रिलेट कर दूंगा। अगला क्वेश्चन लेंगे हम, उससे सिलेंड्रिकल कैपेसिटर रिलेट कर देंगे बच्चों। तो दो टॉपिक जो है कैपेसिटर के, जो बच्चों को समझ में नहीं आते वो यहीं पे आपको समझ में आ जाएंगे। चलिए, तो हम लोग रिलेट करने के लिए दोनों क्वेश्चन ले रहे हैं। आपको रेट ऑफ फ्लो ऑफ हीट dq/dt हीट करंट निकालना है। सोचिए, 2 मिनट का टाइम दे रहा हूं मैं आपको, चलिए ट्राई करिए। मैं 2 मिनट का टाइम दे रहा हूँ, मैं 1 मिनट में आया।
किसी कुछ पूछना है क्या क्वेश्चन से रिगार्डिंग? दो स्फीयर है, स्मॉलर रेडियस r1, बिगर रेडियस r2, टेम्परेचर T1 इज ग्रेटर देन T2, आपका थर्मल कोएफिशिएंट ऑफ थर्मल कंडक्टिविटी K ले लीजिएगा बच्चों, कोएफिशिएंट ऑफ थर्मल कंडक्टिविटी K है आपका, और आपको निकालना है बच्चों dQ/dt। Okay guys, anyone done? Anyone done?
चलिए देखते हैं। किसी से हुआ क्या बच्चों? सुनिएगा ध्यान से बच्चों, मुझे dq बाई dt निकालना है ना। तो कल मैंने आप लोग को बताया था लास्ट क्लास में, dq बाई dt जो होता है बच्चों आपका, ये होता है T1 माइनस T2 वोल्टेज डिफरेंस अपॉन L बाई K थर्मल रेसिस्टेंस। मैं बच्चों पहले RTH निकाल लेना चाहता हूँ, थर्मल रेसिस्टेंस। थर्मल रेसिस्टेंस कैसे निकालते हैं आप? तो आप बोलेंगे सर यहाँ से आप R डिस्टेंस पे जाइए और एक छोटा सा स्फेरिकल सेल कंसीडर कर लीजिए सर, जिसका रेडियस R है, और R प्लस DR पे जाके दूसरा स्फेरिकल सेल हमने कंसीडर किया बच्चों, ठीक है ना। आपने बोला सर R प्लस DR पे जाके, मतलब इसकी थिकनेस जो है बच्चों वो DR है, R प्लस DR पे जाके। तो सबसे बच्चों मुझे पहले क्या लिखना है? DR लिखना है। तो आप बोलेंगे लेंथ, लेंथ DR है बच्चों, इसके अक्रॉस जो DR है ये आपकी इसकी स्मॉल लेंथ है, अपॉन के L बाय के ए होता है ना बच्चों एरिया। एरिया क्या लिखेंगे, किसी कोई बच्चा बताएगा मुझे एरिया क्या लिखेंगे बच्चों स्फेरिकल सेल का? बोलिए, व्हाट एरिया राइट? 2 पाई आर टी आर। ना बच्चों, 2 पाई आर डी आर लिखते हैं हम लोग जबकि आपका डिस्क का होता है, रिंग लेते हैं तब लिखते हैं 2 पाई आर डी आर। बच्चों ये क्या है? 8 pi or dear? 8 पाई आर डी आर भी नहीं लिखेंगे बच्चों, सोचिए सोचिए थोड़ा। स्फेरिकल सेल है बच्चों, मुझे वॉल्यूम लिखना मतलब देखिए, मैं अगर ऐसा लिखूं, अगर आपको 4/3 पाई आर क्यूब वॉल्यूम होता है बच्चों, तो वॉल्यूम का डिफरेंशिएशन अगर करोगे एक एरिया होगा, तो बच्चों मैं बोलूं कि 4 पाई आर स्क्वायर लिखता हूं मैं इसको। क्या मेरी बात समझ में आई आपको बच्चों? मुझे एरिया लिखना था ना स्फेयर का, हॉलो स्फेयर का एरिया तो यही होगा बच्चों ना। जिन बच्चों को कंफ्यूजन है, 4/3 पाई आर क्यूब ये वॉल्यूम होता है बच्चों, हाँ या बना बोलिए तो। ये डीवी बाई डी आर करिए तो क्या होता है बच्चों आपका? तो आप बोलेंगे सर 4/3 पाई आर क्यूब को 3R लिखते हैं सर, तो ये कर गया बच्चों आपका 4 पाई आर हो गया, डीवी बाई डी आर ये तो एरिया होता है बच्चों, ठीक है ना, वॉल्यूम का। ठीक है, कितनी बात क्लियर है बच्चों? अब आगे बढ़ते हैं। अब इसको इंटीग्रेट करते हैं बच्चों, कहाँ से कहाँ तक इंटीग्रेट करेंगे? आप बोलेंगे सर R1 से लेके ये 0 से R तक हुआ बच्चों, तो R को आप लिख सकते हैं 1/4 पाई के बाहर गया, 1/R स्क्वायर का इंटीग्रेशन -1/R हुआ बच्चों। अपर लिमिट पुट करोगे तो -1/R2 माइनस प्लस 1/R1। मैं डायरेक्टली लिख रहा हूँ बच्चों 1/R1 माइनस 1/R2, ठीक लिखा गया देखिए तो आप बोलेंगे बच्चों दिस विल बी 1/4 पाई के R2 माइनस R1 अपॉन R1 R2। चेक कर लीजिए अच्छे से, मैंने माइनस को अंदर लेके मल्टीप्लाई भी कर दिया बच्चों, तब ऐसा हुआ, नहीं तो 1/R2 माइनस 1/R1 होता माइनस बाहर, ठीक है ना। अब बच्चों मुझे निकालना था dq बाई dt, तो मेरा काम सिंपल हो गया बच्चों ने, मैंने टेम्परेचर डिफरेंस तो T1 माइनस T2 ही रहेगा बच्चों, T1 माइनस T2 टेम्परेचर डिफरेंस रहेगा। आपने रेजिस्टेंस निकाल लिया 1/4 पाई के R2 माइनस R1 डिवाइडेड बाय R1 R2। तो ये ऊपर चला गया टर्म, देखिए 4 पाई के, आपका आंसर आ गया 4 पाई के R1 माइनस R2, सॉरी R1 इंटू R2, R1 इंटू R2 डिवाइडेड बाय R2 माइनस R1। अब मुझे बच्चों को बता दे कि ये तो आपका हीट करंट है, कैपेसिटेंस जो होता है बच्चों चार्ज बाय वोल्टेज होता है, Q इज इक्वल टू सी भी, Q इज इक्वल टू सी भी। तो मुझे क्या करना है बच्चों, मुझे करंट निकालना है, dq बाई dt निकालना है मुझे। तो करंट अगर निकालने के लिए बच्चों मैं क्या करूंगा, मुझे वोल्टेज को Q बाय C लिखते हैं ना बच्चों, तो C को Q बाय V लिखेंगे ना। तो ये जो आया है टर्म आपका बच्चों, इससे V को डिवाइड कर देंगे, टेम्परेचर डिफरेंस जो T1 माइनस T2 इधर छूट गया था बच्चों, इसको मुझे इधर डिवाइड करना पड़ेगा ना। तो एक्सप्रेशन आपका जो आएगा, जो कैपेसिटेंस के लिए आता है बच्चों, सुनिएगा ध्यान से, कैपेसिटेंस में ये टर्म सिर्फ वोल्टेज डिफरेंस वाला टर्म नहीं आएगा बच्चों, क्योंकि C बाय भी Q बाय भी होता है, और ये Q आपका चार्ज है
चार्ज dq बाई dt करंट ही हो जाता है बच्चों। तो करंट तो आपका जो है यहाँ पर, अब आप जब इसको जब लिखोगे कैपेसिटर, सुनिएगा ध्यान से, 4 पाई एच लिखोगे, के को कोफिशिएंट ऑफ थर्मल कंडक्टिविटी को एप्सिलॉन नॉट से रिप्लेस करोगे बच्चों, R1 R2 डिवाइडेड बाय R2 माइनस R1। ये सेम कैपेसिटेंस का फॉर्मूला हो गया स्फेरिकल कैपेसिटर के लिए बच्चों, ठीक है ना। तो मैंने बोला अगर यहाँ पे आपको बेसिक्स पता है, अब आप बोलेंगे सर आपने के को एप्सिलॉन नॉट से कैसे रिप्लेस कर दिया बच्चों, ठीक है ना। के को एप्सिलॉन नॉट से रिप्लेस कैसे कर दिया, वहां पे जो एक पैरामीटर होता है बच्चों परमिटिविटी, उसको हमने यहाँ पे कांस्टेंट के है, वहां पे कांस्टेंट 4 पाई एप्सिलॉन नॉट 1 बाय 4 पाई एप्सिलॉन नॉट है बच्चों। बट 1 बाय 4 पाई एप्सिलॉन नॉट से नहीं, के को सिर्फ हमने एप्सिलॉन नॉट से रिप्लेस किया, ठीक है ना। बस यहाँ पे ध्यान रखिएगा बस बच्चों, और कुछ नहीं है। क्या मेरी बात क्लियर है कि आपका स्फेरिकल कैपेसिटर में फिर से डिफाइन करूंगा मैं, तो ये आप डायरेक्टली वहां पे लिंक कर सकते हैं बच्चों, ठीक है ना। पहले नोट कर लीजिए सारे बच्चे, फिर मैं दूसरा क्वेश्चन इसी में भेजता हूँ जो आपका सिलेंड्रिकल कैपेसिटर के लिए आपका हेल्प करेगा आपको समझने में। चलिए बच्चों इसको आप नोट कर लीजिए। सर वो आप कैपेसिटेंस का पार्ट और पर बता देंगे, मैं थोड़ा मिस हो गया था। हाँ बच्चों मैंने क्या बोला कि कैपेसिटेंस में आप लिखते हो चार्ज बाय वोल्टेज, सी इक्वल टू क्यू बाय वी। तो वोल्टेज का तो यही रोल है ना जो इसका रोल है आंसर T1 माइनस T2 का। जी सर। तो इसको आप हटा दीजिए कैपेसिटेंस के एक्सप्रेशन में, वोल्टेज कहीं नहीं आएगा यहाँ पे, ठीक है बच्चों। इसको आप हटा दिए। अब जहाँ के है अंशु उसको रिप्लेस कर दिया एप्सिलॉन नॉट से। और कोई चेंज किया क्या मैंने देखे नो सर। तो दिस इज द एक्सप्रेशन फॉर कैपेसिटेंस। ओके सर। अब मैं अगला क्वेश्चन दे रहा हूँ बच्चों। इससे आपका स्फेरिकल क्लियर हो गया कैपेसिटेंस, इससे आपका सिलेंड्रिकल कैपेसिटेंस क्लियर हो जाएगा बच्चों। सिलेंड्रिकल कंडक्टर है बच्चों आपका एक, मैंने फर्स्ट टाइम करा दिया था बच्चों, स्फेरिकल और सिलेंड्रिकल करवा दूंगा तो इससे अधिक क्वेश्चन पूछते नहीं बच्चों। ये आपका मैक्सिमम इस टाइप क्वेश्चन पूछ सकते हैं वो। ये रेडियस R1 है बच्चों और ये रेडियस R2 है। आपको बताना है बच्चों dq by dt फॉर दिस केस व्हाट इट विल बी। कोफिशिएंट थर्मल कंडक्टिविटी के, टेम्परेचर T1 ग्रेटर है बच्चों बाहर के टेम्परेचर T2 से, T1 इज ग्रेटर देन T2।
चलिए बच्चों बताइए। चलिए बच्चों देखते हैं। यहाँ पे आपको एक ऐसा एलिमेंट लेना पड़ेगा। आप लोग बच्चों एलिमेंट लेने में कंफ्यूजन होता है क्या आप लोग को? आप लोग को तो बच्चों सेंटर ऑफ मास और रोटेशन को एक बार रिवाइज करना चाहिए, ठीक है ना। चलिए तो आपने एक आर पे जाके डी आर थिकनेस का सिलेंडर लिया बच्चों, आपने आर पे गए और एक डी आर थिकनेस का सिलेंडर आपने कंसीडर कर लिया बच्चों ऐसा। फिर से आप क्या लिखोगे, इसका लेंथ इसका एल ले लेते हैं बच्चों हम लोग। एरिया क्या लिखोगे आप इसका, बताइए तो कोई बच्चा। डी आर पहले लिखना है बच्चों, तो स्मॉल डी आर डिवाइडेड बाय के टाइम्स ऑफ, बोलिए क्या लिखूं, 2 पाई स्मॉल आर, इसका रेडियस स्मॉल आर है बच्चों, इंटू एल नहीं लिखूंगा बच्चों। क्या देखिए यस तो सर। इंटीग्रेट कीजिए कहां से कहां तक, R1 से R2 तक। मुझे इंटीग्रेशन के बाद आंसर बताइए। सर ln r2 बाई r1 बाई 2k पाई बाई 2k पाई l। राइट, बिकॉज ये बच्चों 1/2 पाई के एल कॉन्स्टेंट बाहर है, ln हो गया बच्चों ये अपर लिमिट R2 माइनस लोअर लिमिट R1। तो आप बोलेंगे ये बच्चों आपका एक्सप्रेशन आ गया ये, ठीक है ना। ये R आ गया बच्चों, मुझे क्या चाहिए था, dq/dt। तो आप बोलेंगे सर टेम्परेचर का डिफरेंस T1 माइनस T2 डिवाइडेड बाय 1/2 पाई के एल ln R2/R1। अब सर इसको मैं ऊपर ले जाता हूं तो T2 माइनस T1 2 पाई के एल T1 माइनस T2 अपॉन ln R2/R1 हो गया ना बच्चों, देखिए तो इसका मतलब है अगर कोई बच्चा मुझे बता पाए कि सर सिलेंड्रिकल कैपेसिटर का कैपेसिटेंस क्या होगा, तो मुझे लगेगा कि आपको कुछ समझ में आया। अदरवाइज ठीक है, ये आप फिर से पढ़ेंगे ही, बट आप मुझे लगता है कि थोड़ा गेस कर सकते हैं अब कि व्हाट इज एक्सप्रेशन फॉर सिलेंड्रिकल कैपेसिटर बाय सीइंग दिस एक्सप्रेशन। सर 2k पाई l बाई ln r2 बाई r1। के बोलेंगे क्या अंशु, के बोल, सर 2k पाई l बाई ln r2 बाई r1। 2 के बोलेंगे क्या, बस मैं ये पूछना चाहता हूँ। एल अच्छा अच्छा आपने सब एप्सिलॉन नॉट एप्सिलॉन। एप्सिलॉन नॉट, वेरी गुड। तो 2 पाई एप्सिलॉन के को एप्सिलॉन नॉट से रिप्लेस करो, ln आपका सिलेंड्रिकल कैपेसिटर का एक्सप्रेशन आ गया बच्चों, ठीक है। ये सब एक्सप्रेशन बच्चों को याद नहीं रहते बच्चों, तो आप बोल सकते हैं सिंपली, जब आप थर्मल कंडक्टिविटी पढ़ रहे थे सर तो हमने ये पढ़ लिया था 2 पाई एप्सिलॉन नॉट एल बाय ln R2/R1, ठीक है ना। तो दिस इज दैट इज वाई मैंने थोड़ा सा इसको एक्सटेंड किया, मुझे लगा कि ये चीजें लिंक करी जा सकती है, दैट इज वाई आई लिंक दिस थिंग्स, ओके। अब ये बुक में कहीं नहीं लिखेंगे बच्चों कि ये बड़ा होके सिलेंड्रिकल कैपेसिटर बन जाएगा या बड़ा होके स्फेरिकल बन जाएगा, बुक में नहीं लिखेंगे, बट यू हैव टू अंडरस्टैंड दिस, ओके। यस। चलिए बच्चों अब हम बात करते हैं आज के टॉपिक की। मैंने आपको बोला था रेडिएशन वी विल स्टार्ट इन नेक्स्ट क्लास, कन्वेक्शन इज नॉट इन पार्ट ऑफ सिलेबस,
कन्वेक्शन सिलेबस में नहीं है बच्चों। रेडिएशन, रेडिएशन के बारे में बच्चों थ्योरी ही आज हो पाएगी, मतलब मैं कोशिश करूंगा कि मोस्ट ऑफ द पोर्शन कवर कर लूं थ्योरेटिकल आज, क्योंकि बहुत सारी थ्योरी है रेडिएशन में बच्चों। अगर थ्योरी आपको नहीं समझ तो रेडिएशन का आपको अंडरस्टैंडिंग अच्छे समझ में नहीं आएगा बच्चों। तो रेडिएशन बेसिकली है क्या? आपने रेडिएशन का नाम पहली बार कब सुना बताइए तो? कब सुना रेडिएशन का नाम पहली बार आपने बच्चों? जब आपने लाइट के बारे में पढ़ा। लाइट इज इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव, लाइट से रेडिएशंस निकल रही है बच्चों, वो अर्थ तक आती है। उस अर्थ तक आने में उसको बहुत सारे ऐसे जगह होते हैं जहां पे मीडियम नहीं होता है, वैक्यूम से ट्रेवल करना पड़ता है, मीडियम से ट्रेवल करना पड़ता है। तो रेडिएशंस कमिंग फ्रॉम द सन, सुना है ना बच्चों ये वर्ड आपने? अल्ट्रावायलेट रेडिएशंस व्हिच इज कमिंग फ्रॉम द सन इज डेंजरस फॉर आवर हेल्थ, स्किन एंड ऑल, ये सब सुना है ना बच्चों आपने? यस। तो बच्चों अब इसी चीज को मैं थोड़ा एक्सटेंड करता हूँ। रेडिएशन बेसिकली क्या होते हैं बच्चों? इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स होते हैं ये इलेक्ट्रो। अच्छा, रेडिएशन आपका सबसे फास्टेस्ट वे ऑफ ट्रांसफर ऑफ हीट है। मैं अगर बोलूं बच्चों रेडिएशन का डेफिनेशन, दिस इज अ वे इन विच हीट कैन ट्रांसफर इन फास्टेस्ट मेथड। जैसे आपका कंडक्शन था, कन्वेक्शन था बच्चों, कंडक्शन एंड कन्वेक्शन में आपको टाइम लगता था ज्यादा बच्चों। तो रेडिएशन जो है बच्चों ये फास्टेस्ट वे ऑफ हीट ट्रांसफर, फास्टेस्ट वे ऑफ ट्रांसफर ऑफ हीट। अच्छा, ये फास्टेस्ट क्यों है बच्चों? ये क्यों है? क्योंकि बच्चों दिस इज नथिंग बट ईएम वेव्स, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स है बच्चों, एंड it travels with 3 into 10 to the power 8 meter per second in vacuum and they see by mu in any medium। म्यू कितना होता है बच्चों? 1.33 1.5, यही तो बच्चों होता है ना। तो लाइट इज इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव एंड रेडिएशन जो है बच्चों वो भी इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव सी है। तो ये ट्रेवल करती है इस स्पीड से वैक्यूम में एंड सी बाय म्यू से इन एनी अदर मीडियम, दैट इज द फास्टेस्ट। इस जो कोई भी मीडियम की जरूरत नहीं पड़ती, मतलब नो मीडियम इज रिक्वायर्ड फॉर रेडिएशन। आपको जैसे सॉलिड के लिए मैंने बोला था ना कंडक्शन, याद रखिएगा आप। फ्लूइड के लिए कन्वेक्शन, मतलब कन्वेक्शन फ्लूइड्स में होता है, कंडक्शन सॉलिड्स में होता है, लिक्विड कुछ गैस में भी होते हैं बच्चों। लेकिन नो मीडियम इज रिक्वायर्ड फॉर रेडिएशन। यहां तक ठीक है बच्चों क्या? नो मीडियम इज रिक्वायर्ड फॉर रेडिएशन। रेडिएशन के लिए कोई भी मीडियम की जरूरत नहीं पड़ती है बच्चों, ठीक है ना। रेडिएशन वैक्यूम में भी हो सकता है, मीडियम में तो हो ही सकता है जो वैक्यूम में। रेडिएशन की एक खास बात है बच्चों कि जब रेडिएशन होता है ना तो जिस मीडियम से आपका एनर्जी ट्रांसफर हो रही है, यानी कि इंटरवेनिंग मीडियम इज नॉट हीटेड। तो आप याद रखिएगा, द मीडियम थ्रू विच रेडिएशन इज अकरिंग, intervening medium is not disturbed or not heated। तो the medium अब आप बोल सकते हैं बच्चों सर आपने तो बोला रेडिएशन के लिए वैक्यूम होना चाहिए, वैक्यूम होना चाहिए, ऐसा नहीं बोला बच्चों। मीडियम की जरूरत नहीं है इसका ये मतलब नहीं कि वो वैक्यूम ही होगा तभी होगा, नहीं। मीडियम होगा तो भी कोई प्रॉब्लम नहीं है, नहीं होगा तो भी प्रॉब्लम नहीं है। लेकिन कंडक्शन और कन्वेक्शन बिना मीडियम के नहीं हो सकते थे बच्चों, ये बिना मीडियम के भी हो सकता है। तो द मीडियम through which a radiation is taking place, the medium through which a radiation is taking place, जिसके थ्रू रेडिएशन हो रहा है बच्चों, वो मीडियम इज नॉट डिस्टर्ब,
The medium through which radiation is taking place, that is intervening medium, is known as intervening medium. अच्छा, intervening medium क्यों बोला बच्चों उसको मैंने? taking place is known as intervening medium. मैं ये लाइन क्यों लिख रहा हूँ आपको समझ में आ जाएगा बच्चों जब मैं अगला लाइन लिखूँ. intervening medium. यहाँ पे intervening medium is not heated. इसको मैं शॉर्ट में बच्चों intervening medium IM लिखता हूँ बच्चों. तो intervening medium is not heated while radiation occurs. ठीक है बच्चों, intervening medium is not heated while radiation occurs. ठीक है, आगे बढ़े. Sir, Yes. then during radiation, where is the energy loss? एनर्जी का लॉस बच्चों आपका मैं बोलूं तो जब आपका पार्टिकल होता क्या है, ट्रैप कर लेता है कुछ हीट बच्चों. तो जब पार्टिकल ने हीट को ट्रैप कर लिया बच्चों, तो इसका मतलब क्या हुआ कि वो जो अब हीट का फ्रैक्शन है, वो जैसे मैं अभी बताऊंगा, जब आप आइडियली ब्लैक बॉडी बनाओगे बच्चों, तो उसमें कैसे होता है, तो वो जो एब्जॉर्ब कर रहा है बच्चों हीट ना, उस एब्जॉर्प्शन के बच्चों वजह से इसका लॉ मतलब वो होता है. तो मीडियम के पार्टिकल्स जो होते हैं, जैसे आपका सन रे जब आती है बच्चों ना, वो शॉर्टर वेवलेंथ के फॉर्म में आती है. ठीक है ना, शॉर्टर वेवलेंथ के फॉर्म का मतलब क्या है, उसकी एनर्जी बहुत हाई रहती है बच्चों. लेमडा अगर लेस तो एनर्जी हाई इज इक्वल टू एच सी बाय लेमडा. तो मैंने बोला जब वो रिटर्न होती है बच्चों, तो एयर के मॉलिक्यूल्स है, कार्बन मोनोऑक्साइड है, कार्बन डाइऑक्साइड है, मीथेन है, ये सब उसको ट्रैप कर लेते हैं बच्चों, और उस शॉर्टर वेवलेंथ को लॉन्गर वेवलेंथ में बदल देते हैं. अपने ग्रीन हाउस इफेक्ट पढ़ा, याद आ रहा है आपको कुछ कुछ, कि जो सन से रेडिएशंस आते थे शॉर्टर वेवलेंथ वाले, उसको ये ट्रैप कर लेते हैं मॉलिक्यूल्स. तो जिसकी वजह से बच्चों आपका ये जो एनर्जी होती है घट जाती है, लॉन्गर वेवलेंथ में कन्वर्ट हो जाता है. ये लॉन्गर वेवलेंथ की एनर्जी इतनी कम होती है कि दे कैन नॉट गो बैक टू स्पेस, एंड इसलिए धीरे धीरे आपका टेम्परेचर, अर्थ का आपका इन्वायरमेंटल कंडीशन, टेम्परेचर सब बढ़ रही है. ये सब पढ़ा था मुझे ग्रीन हाउस गैसेस में आप लोगों ने. तो ये ट्रैपिंग जो होती है ना एनर्जी की, ये मॉलिक्यूल्स के द्वारा होती है. जो आपके मॉलिक्यूल्स होते हैं एयर के, डस्ट पार्टिकल्स या गैसेस होते हैं, दीज ट्रैप्स द थिंग्स टू रिड्यूस द एनर्जी. इज इट क्लियर? Yes. चलिए बच्चों, IM मींस इंटरवेनिंग मीडियम इज नॉट हीटेड व्हाइल रेडिएशन अकर्स. ठीक है बच्चों, तो अब रेडिएशंस के बारे में इतनी इंपॉर्टेंट बातें हैं बच्चों ना, आपको बहुत सारी चीज रेडिएशन के बारे में समझनी है अभी. तो मैं स्टार्ट करता हूँ कुछ पॉइंट्स बच्चों, ठीक है ना. तो आपका अगर मैं बोलूं बच्चों, एक लॉ है जिसको हम बोलते हैं प्रीवोस्ट थ्योरी ऑफ रेडिएशन. तो प्रीवोस्ट थ्योरी ऑफ रेडिएशन ये बोलता है, जरा ध्यान से देखिएगा बच्चों. तो मैं पहले प्रीवोस्ट थ्योरी से पहले कुछ आपको बता देता हूँ. मैं प्रीवोस्ट थ्योरी बाद में लिखवाऊंगा आपको, सुनिएगा ध्यान से. प्रीवोस्ट ने बोला था बच्चों, अगर कोई भी बॉडी जिसका टेम्परेचर 0 केल्विन से ज्यादा हो, मैं लिखा नहीं रहा हूँ इसको, मैं आराम से लिखवाऊंगा, पहले कुछ पॉइंट्स डिस्कस कर लेते हैं. कोई भी बॉडी जिसका टेम्परेचर 0 केल्विन से, 0 केल्विन मतलब ये आपका -273 डिग्री सेंटीग्रेड हो गया बच्चों, ठीक है ना, से ज्यादा हो, वो रेडिएशन एमिट करेगी अपने सराउंडिंग्स को. आप बोलेंगे सर ये कैसे पॉसिबल है सर, अगर आइस है सर, तो आइस तो सिर्फ हीट लेता है सर, हीट देता थोड़ी है. तो आपको क्या लगता है बच्चों, आइस सराउंडिंग को हीट देता नहीं है क्या बच्चों? आइस भी रेडिएशन के फॉर्म में हीट को देता है बच्चों, बट जो आइस हीट को दे रहा है ना बच्चों, उसके कंपैरिजन में वो जो एक्सेप्ट कर रहा है ना, वो मोर है. तो उसका टेम्परेचर धीरे धीरे बढ़ता जाता है. अगर बॉडी का टेम्परेचर लेस हो सराउंडिंग के टेम्परेचर से, तो बॉडी के द्वारा एमिट रेडिएशन जो है, मैं आपको डायग्राम बना के समझाता हूँ. देखिए बच्चों, मान लीजिए बच्चों एक कोई बॉडी है, इरेगुलर शेप की बॉडी है, इसका टेम्परेचर है TB मैंने बोल दिया बच्चों, और सराउंडिंग का टेम्परेचर है TS. मैं इसको अच्छे से अगर लिखूं, बॉडी गायब हो गई. देखिए ये बॉडी है बच्चों,
ये सराउंडिंग का टेम्परेचर है TS। मान लीजिए आपने बोला कि सर TB जो है लेस देन TS है, तो TB रेडिएशन एमिट कर रहा है कंटिन्यूअसली बच्चों, रेडिएशन एमिट कर रहा है क्योंकि 0 केल्विन से ज्यादा है TB का टेम्परेचर। लेकिन इस पर जो रेडिएशन फॉल हो रहे हैं बच्चों, इस पर जो रेडिएशन फॉल हो रहे हैं बिकॉज ऑफ सराउंडिंग, क्योंकि सराउंडिंग एट हायर टेम्परेचर है बच्चों, सराउंडिंग जो एट हायर टेम्परेचर इस पे जो रेडिएशन फॉल हो रहे हैं बच्चों, देखिए आप वो ज्यादा है ना, तो रेडिएशन अगर फॉल ज्यादा हो रहा है इस पे बच्चों और ये कम एमिट कर पा रहा है, तो क्या होगा बच्चों, इसका टेम्परेचर, बॉडी का टेम्परेचर धीरे 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 बढ़ेगा बच्चों, और यहाँ पे हीटिंग होती है। लेकिन जस्ट इसका मतलब क्या है बच्चों, आइस को अगर आपने रख दिया है इन्वायरमेंट में खुले टेम्परेचर पर, रूम टेम्परेचर पे, तो आइस धीरे धीरे पिघल जाएगा बच्चों, बट फ्रिज में वो नहीं पिघलेगा। अब मान लीजिए दूसरा कंडीशन हमने बोला बच्चों कि ये है बॉडी और ये है उसकी सराउंडिंग। इस बार मैंने बॉडी का टेम्परेचर ज्यादा रखा है सराउंडिंग के टेम्परेचर से। इस बार जो रेडिएशंस निकलेंगे बॉडी से, वो नंबर ऑफ रेडिएशंस व्हिच इज कमिंग आउट फ्रॉम द बॉडी इज मोर एज कंपेयर टू व्हाट इट इज एक्सेप्टिंग। इट इज एक्सेप्टिंग ओनली अ फ्यू, और बट बच्चों निकल रहा है ज्यादा, तो इस बार बॉडी क्या होगा बच्चों, कूलिंग होगी। यहाँ पे कूलिंग विल अकर, जब बॉडी से रेडिएशन ज्यादा निकले बच्चों और कम ये एक्सेप्ट करे, तो कूलिंग, जब कम निकले और ज्यादा ये एक्सेप्ट करे तो यहाँ पे हीटिंग बच्चों। तो हीटिंग एंड कूलिंग आर टू फिनोमिना विच इज टोटली डिपेंडेंट ऑन प्रीवोस्ट थ्योरी। एंड प्रीवोस्ट थ्योरी क्या बोलती है बच्चों कि ऑल बॉडी विच आर एट टेम्परेचर ग्रेटर देन 0 केल्विन एमिट्स रेडिएशन ऑफ डिफरेंट वेवलेंथ। अब सुनिएगा बच्चों, मैं अगर आपसे बोलूं कि आप जहां बैठे हो, जिस रूम में बैठे हो बच्चों, वहां पे वॉल्स हैं, आप खुद, आपके हाथ पैर सब कुछ है, तो आपके आसपास का और भी सारी चीजें हैं, चेयर टेबल कुर्सी सोफा बेड, ये सब सारी चीजें हैं बच्चों, तो ये सारे रेडिएशन एमिट करते हैं, इसी की वजह से मैं इसको देख पाता हूँ क्या, जो ये रेडिएशन एमिट कर रहे हैं, क्या मैं इसी के वजह से इसको देख पाता हूँ क्या? सोच के बोलिएगा, बोल के मत सोचिएगा, क्योंकि ये तो रेडिएशन एमिट कर रहे हैं बच्चों, 0 केल्विन से ऊपर है सबके टेम्परेचर, रूम टेम्परेचर पे है, तो ये जो रेडिएशन एमिट कर रहे हैं, उसी रेडिएशन की वजह से मैं देखता हूँ क्या। बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट डिस्कस कर रहा हूँ बच्चों, ये बच्चों को समझ में नहीं आता अक्सर, लेकिन आप लोग ध्यान हाँ से सर। सुनिएगा। तो जो रेडिएशन एमिट कर रहा है, उसी रेडिएशन की वजह से हम देख पाते हैं क्या बच्चों? हाँ सर। क्यों? वाई नो एंड यस, तो वाई यस? सर हम तो देख पाते हैं जब सोर्स का लाइट वो रिफ्लेक्ट करता है, रेडिएट नहीं। अब सुनिएगा ध्यान से बच्चों, तो कोई भी बॉडी जो आपके सराउंडिंग में रखी है, वो जो रूम टेम्परेचर पे है, कोई भी बॉडी, सुनिएगा ध्यान से बच्चों, बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट लिख रहा हूं मैं यहाँ पे, एनी बॉडी जो रूम टेम्परेचर पे रखी है, वो जो रेडिएशन एमिट कर रही है बच्चों, सुनिएगा ध्यान से, वो किस रेंज में है बच्चों? वो आपका यूवी रेंज में है या इंफ्रारेड रेंज में है, सुनिएगा ध्यान से। तो जो रेडिएशन रूम टेम्परेचर पे एमिट हो रहा है बच्चों, वो मेनली जो होता है बच्चों, जो रेडिएशन एमिट हो रहा है, वो विजिबल रेंज में नहीं है बच्चों, वो इंफ्रारेड रेंज में, IR रीजन में है, IR रीजन में है। तो आप IR रीजन की चीजों को थोड़ी देख पाओगे। तब आप बोलोगे सर हम चीजों को देखते कैसे हैं बच्चों, हम चीजों को देखते कैसे हैं सर, अगर रेडिएशन जो निकल रहा है उसको हम सेंस ही नहीं कर पाते हैं सर, तो हम चीजों को देखते कैसे हैं? तो बच्चों लाइट, या ट्यूब लाइट आपके रूम में लगा है, या दिन में वो सन की लाइट आ रही है बच्चों, तो इससे कुछ फोटोन्स निकल रहे हैं ना बच्चों, ये फोटोन्स टकरा रहे हैं ना, वो फोटोन्स जो विजिबल रेंज में है, वो टकरा के वापस हमारी आईज तक लौट रहे हैं बच्चों। ये जो लाइट का रिफ्लेक्शन हो रहा है, जो फोटोन्स जो लौट रहे हैं हमारी आंखों पे, वो फोटोन्स या वो लाइट जो रिफ्लेक्शन है बच्चों, वो रिस्पॉन्सिबल है उस चीज को दिखाने के लिए। आप बोलोगे सर अभी तो आपने बोला कि कोई बॉडी 0 केल्विन से ज्यादा टेम्परेचर पे है तो वो रेडिएट करेगा। हाँ बच्चों, रेडिएट तो वो कर ही रहा है, लेकिन वो रेडिएशन आप नहीं देख पा रहे हो। आप क्या देख पा रहे हो बच्चों? जो फोटोन्स, जो लाइट, जो ट्यूबलाइट से लाइट गिरी, रिफ्लेक्ट होके आपके आंखों पे आई, वो आप उसकी वजह से बोर्ड देख पा रहे हो। एक और छोटा सा एग्जांपल देता हूँ बच्चों, अब मैं आपके कमरे को पूरा अंधेरा कर दूं, सब लाइट को स्विच ऑफ कर दूं, पर्दे को अच्छे से लगा दूं, तो बच्चों अभी आपके रूम में क्या टेबल नहीं था, चेयर नहीं था, कुर्सी नहीं थी, आप खुद, आपके हाथ नहीं थे क्या? अभी वो एमिट कर रहे होंगे कि नहीं कर रहे होंगे? हाँ या ना बोले तो। जब यस सब चीज सर। स्विच ऑफ कर दिया, अभी भी तो वो एमिट कर रहे हैं, क्या आप उसको देख पा रहे हो क्या बच्चों? तो हमें जो चीजें रेडिएशंस की वजह से निकल रही है, उनकी वजह से चीजों को हम नहीं देखते हैं बच्चों।
जो लाइट उस पे पड़ रही है, रिफ्लेक्शन के बाद हमारी आई तक पहुंच रही है, उस रिफ्लेक्शन की वजह से हम चीजों को देखते हैं। क्या ये बात क्लियर हुई आपको? यस सर। अब एक और एग्जांपल मैं देना चाहता हूँ बच्चों। आप एक आयरन रॉड ले लो, आप एक आयरन रॉड ले लो बच्चों, ठीक है ना। इस आयरन रॉड को मैंने एक डार्क रूम में रखा बच्चों। आपको क्या लगता है ये रेडिएशन एमिट नहीं कर रहा होगा क्या? डार्क रूम में रखा है इस आयरन रॉड, रेडिएशन एमिट कर रहा होगा कि नहीं कर रहा होगा बच्चों? यस। क्या आप देख पाते हो इसको क्या? ना। अब मैं आपको एक आइडिया देता हूं बच्चों, ठीक है ना। मैंने इसको ऐसे वे से हीट करना स्टार्ट किया बच्चों, या मैं एक काम करूं, दूसरा आयरन लाया मैंने, जिसको पूरा गर्म करके लाया बच्चों। आप उसका रेड पार्ट है अभी, अब रख दिया रूम में। तो एक ये आपका जो है ना, ये रूम टेम्परेचर पर है बच्चों, रूम टेम्परेचर पर है। और ये मान लीजिए आपका किसी हायर टेम्परेचर पे बच्चों। तो कौन सा विजुअल होगा, कौन सा विजुअल नहीं होगा बच्चों? तो हाई टेम्परेचर का विजुअल है। तो इसका टेम्परेचर जो कि बहुत ग्रेटर है बच्चों, मान लीजिए 600 केल्विन है। 600 केल्विन कितना डिग्री सेंटीग्रेड हुआ बच्चों? इसका 300 केल्विन हुआ ना। तो आपने बोला सर ये तो गर्म हो गया है, हमें ये दिखेगा बच्चों, ठीक है ना। अब सुनिएगा ध्यान से मेरी बात बच्चों। अब आपने क्या किया बच्चों, रेड हॉट आयरन को और गर्म किया बच्चों, और गर्म किया। अब क्या होगा बच्चों, ये किस में कन्वर्ट होगा? ये भी रेड था मान लीजिए, और गर्म किया तो ये कन्वर्ट होगा ऑरेंज में। और रेड किया बच्चों, ये कन्वर्ट होगा येलोइस में, ब्लू हो जाएगा, फिर व्हाइट हो जाएगा बच्चों अल्टीमेटली। तो ये हो कैसे रहा है सर? इसका मतलब सर आप बोलना चाह रहे हैं VIBGYOR, पहले रेड हुआ सर, बाद में ये ऑरेंज हुआ सर, फिर येलो हुआ, फिर बाद में ब्लू हो गया सर, एंड फाइनली आपका एक टेम्परेचर सबसे, जब सब इससे एमिट होने लगे बच्चों, तो ये आपको व्हाइट दिखने लगा, व्हाइट हॉट, ठीक है ना। देखा होगा बच्चों आपने ना कि कभी कभी बुनसेन बर्नर की जो फ्लेम्स होते हैं बच्चों, वो आपका कलर को अलग अलग चेंज कर सकते हैं बच्चों, उसकी वजह से उसको हीट करके। तो बच्चों इसका क्या मतलब है कि जैसे जैसे आपने हीट किया बच्चों, हीट करने की वजह से वो चीजें आपका जो रेडिएशन एमिट कर रही है, सुनिएगा ध्यान से, वो अब किस रीजन में आ गए बच्चों? वो इंफ्रारेड में ना होके अब आ गए विजिबल रीजन में बच्चों। जब वो विजिबल रीजन में आ गए तो वो रेडिएशन एमिट कर रहे थे रेड कलर का, आपको दिखा, रेडिएशन एमिट कर रहे थे ऑरेंज का, आपको दिखा, रेडिएशन एमिट कर रहे थे येलो कलर का, आपको दिखा बच्चों। इसका मतलब है बॉडी जब रेडिएशन हाइयर टेम्परेचर पे एमिट करेगा बच्चों, बॉडी जब रेडिएशन हाइयर टेम्परेचर पे एमिट करेगा बच्चों, तो क्या होता है जरा देखते हैं बच्चों। अगर टेम्परेचर बढ़ी बच्चों तो एनर्जी बढ़ेगी ना। एनर्जी 3/2 kT होती है बच्चों, आपने पढ़ा है। टेम्परेचर बढ़ा तो एनर्जी बढ़ी। एनर्जी के बढ़ने से क्या होगा बच्चों, रेडिएशन जो उससे निकल रहे थे बच्चों, जो इंफ्रारेड रीजन में थे, अब वो रेडिएशन आ जाएंगे आपके विजिबल रीजन में। और इस विजिबल रीजन में आने की वजह से आप चीजों को देख पाते हो। क्या मेरी बात आपको समझ में आ रही है कि बस मैं बोलते जा रहा हूँ, आप लोग समझ नहीं पा रहे हो? हाँ सर सर। तो बच्चों देखिए, ये रेडिएशंस को ना फील करने वाला है। आप पढ़ के बुक से नहीं समझ सकते जितनी बातें आप लेक्चर से अटेंड करके समझ सकते हो, ठीक है ना। आप सुनते जाइए, आपका रेडिएशन का एक भी क्वेश्चन गलत नहीं होगा। आप कहीं भी कोई भी असर्शन रीजन टाइप के क्वेश्चन को आसानी से कर पाएंगे। मैंने अभी तक 5 चीजें बताई बच्चों। सर हमें तो पता नहीं चला आपने 5 चीजें क्या क्या बताई। रेडिएशंस क्या है बच्चों? बेसिकली इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स है, जिसको ट्रेवल करने के लिए कोई मीडियम की जरूरत नहीं है। जब ये ट्रेवल करता है तो इंटरवेनिंग मीडियम को हीट नहीं करता है। ये स्पीड ऑफ लाइट से ट्रेवल करता है वैक्यूम में, अगर किसी मीडियम में तो c/μ से ट्रेवल करता है। हम किसी चीज को उसके वजह से निकलने वाले रेडिएशन की वजह से नहीं देख पाते हैं। बिकॉज ऑफ रेडिएशन वी कैन नॉट सी द थिंग्स, बिकॉज रेडिएशन कोई भी रूम टेम्परेचर जो एमिट करता है बच्चों, दैट इज इन इंफ्रारेड रीजन। So whenever anything is emitting radiation at room temperature, that is in infrared region, and that's why we cannot see the things. Now what happens if we started heating the object? किसी भी ऑब्जेक्ट को हीट करने स्टार्ट कर दो बच्चों,
तो क्या होगा, उसका टेम्परेचर बढ़ेगा। टेम्परेचर बढ़ेगा बच्चों तो लैम्डा घटेगा। लैम्डा घटेगा तो बच्चों वो किस तरफ शिफ्ट होगा, जरा बताइएगा। लैम्डा घटेगा उसका तो वो किस तरफ शिफ्ट होगा। ऐसा क्यों बोला सर आपने, टेम्परेचर बढ़ेगा तो लैम्डा घटेगा, ऐसा क्यों बोला सर आपने? सुनिएगा ध्यान से बच्चों, ये आपका कॉस्मिक रे, ये आपका कॉस्मिक रे। कॉस्मिक रे के बाद आता है गामा बच्चों, ठीक है ना, गामा रेस। गामा रेस के बाद आता है आपका एक्स रेस। एक्स रेस के बाद आता है आपका अल्ट्रा वायलेट। विजिबल, विजिबल के बाद आता है बच्चों आपका इंफ्रारेड। फिर आता है आपका माइक्रोवेव, और फिर आपका आता है रेडियो वेव। जब आप इधर से इधर जाते हैं बच्चों तो लैम्डा बढ़ता है, जब इधर से आप इधर आते हैं तो फ्रीक्वेंसी बढ़ती है, या मैं इन शॉर्ट बोलूं लैम्डा घटता है। तो आपने बोला सर E इज इक्वल टू होता है एच सी बाय लैम्डा, सुनते जाइएगा बच्चों, सब लिंक्ड है। और E होता है सर 3/2 kT। जब आपने हीट किया, टेम्परेचर बढ़ा, टेम्परेचर बढ़ने से एनर्जी बढ़ी, एनर्जी के बढ़ने से वेवलेंथ घटा, वेवलेंथ के घटने से शिफ्टिंग राइट होगी या लेफ्ट होगी। इंफ्रारेड में थे हम लोग बच्चों, हमने लैम्डा को कम कर दिया। हम माइक्रोवेव में जाएंगे ना बच्चों, हमने लैम्डा को कम कर दिया, हम माइक्रोवेव में जाएंगे ना, समझ लीजिए। हम इंफ्रारेड में थे बच्चों, जब बॉडी आपका रूम टेम्परेचर पे रखा हुआ होगा तो वॉट एवर द रेडिएशन इज एमिटिंग, इट इज इन इंफ्रारेड रीजन। हमने अभी जितने भी चीजें देखी अपने बॉडी को ही दे देखा तो वो रेडिएशन जो एमिट कर रही है इंफ्रारेड रीजन में कर रही है। लेकिन जैसे टेम्परेचर बढ़ने लगा बच्चों, टेम्परेचर के बढ़ते 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 एक ऐसा पॉइंट आ गया बच्चों जहां पर बॉडी जो है का एनर्जी इतनी ज्यादा हो गई कि वेवलेंथ आपका कम होके शॉर्टर रीजन में शिफ्ट हो गया। शॉर्टर रीजन में शिफ्ट होने का मतलब माइक्रोवेव में जाना ना बच्चों, मैं ये क्वेश्चन पूछ रहा हूँ, विजिबल से माइक्रोवेव, इंफ्रारेड से माइक्रोवेव में जाएगा कि विजिबल में जाएगा? बच्चों लैम्डा घटने का मतलब है आप लेफ्ट आओगे तो इंफ्रारेड से विजिबल में चले। दैट इज व्हाई टेम्परेचर के बढ़ने से आप चीजों को देख पा रहे हो रेडिएशन की वजह से। एक अंधेरे कमरे में भी रेड हॉट आयरन रखा रहेगा ना बच्चों, आपको कुछ भी नहीं दिखाई देगा, लेकिन रेड हॉट आयरन दिखाई देती है। क्वेश्चन है व्हाई यू कैन सी द रेड हॉट आयरन, नॉट एनी अदर थिंग्स, व्हाट यू कैन से, नाउ टेल, बताइए बच्चों। Because of its high temperature, it is radiating radiations in visible range. That's why you can see it. आप ऐसे बोल सकते हो बच्चों कि सर जब वो आपका आयरन ठंडा था यानी कोल्ड था तो रूम टेम्परेचर पे था, रूम टेम्परेचर 300 पे था सर। 300 पे जो भी रेडिएशन वो एमिट कर रहा था, द रेडिएशन दैट इज एमिटिंग इन इंफ्रारेड रीजन, इंफ्रारेड रेडिएशंस को वी कैन नॉट डिटेक्ट और सी। तो जब हमने उसको हीट किया तो हीट करने से टेम्परेचर बढ़ाया हमने, बॉडी का टेम्परेचर बढ़ा होगा बच्चों, 0 से 100 हुआ होगा, 200 300 हुआ होगा। टेम्परेचर के बढ़ने से एनर्जी बढ़ी, एनर्जी के बढ़ने से वेवलेंथ क्या हुआ बच्चों, घट बोलो बोलो, घटा। वेवलेंथ के घटने की वजह से आपका उसकी शिफ्टिंग हो गई इंफ्रारेड रीजन से विजुअल रीजन। जैसे जैसे बढ़ाओगे आप तो आपका रेड, ऑरेंज, येलो इस तरफ आप शिफ्ट होते जाओगे बच्चों। एंड दैट इज व्हाई दिस इज द रेडिएशन। ये क्लास 8 में पढ़ा होगा बच्चों आपने, क्या 8 में ऐसा समझा था आपने क्या 8 में बच्चों? no. अब आपको मुझे लगता है चीजें समझ में आई बच्चों Yes. कि हम रेडिएशंस की वजह से भी चीजों को देख सकते हैं, लेकिन कब देख सकते हैं बच्चों? We can see the things because of radiation also, but only when that is in visible region, वो बच्चों हाइयर टेम्परेचर पे पॉसिबल है, ठीक है ना? इतनी बात क्लियर है बच्चों? आप लोग लिख पा रहे हो क्या? आप लोगों को लिखना है तो आप लोग लिख सकते हैं, जल्दी से स्क्रीनशॉट भी ले सकते, लिख सकते, जैसी इच्छा आपकी। मैं रेडिएशन की थ्योरी बच्चों एक दिन पूरा लग जाएगा, अगले क्लास में रेडिएशन कंप्लीट हो जाएगा, ठीक है ना? मैं स्किप अच्छा एक चीज है, अगले क्लास में नहीं, आज मैं बहुत ज्यादा पार्ट रेडिएशन का करवा सकता हूँ,
थोड़ा जल्दी करेंगे बच्चों, हम लोग थोड़ा जल्दी करेंगे। चलिए, अब बच्चों आती है थ्योरी। तो पहली थ्योरी है बच्चों प्रीवोस्ट की थ्योरी, प्रीवोस्ट थ्योरी ऑफ रेडिएशन, प्रीवोस्ट थ्योरी में बोलता हूँ इसको बच्चों, ठीक है ना। इसका स्टेटमेंट सिंपल है बच्चों, each body, it state that you can simply each body radiates, each body radiates energy to its surroundings, each body radiates energy to its surrounding and receives energy from surrounding if the temperature of the body, if temperature of, if its temperature is greater than 0 Kelvin. So any body radiates energy to its surrounding and receive energy from the surrounding if its temperature is greater than, basically प्रिवोस्ट ने बोला था बच्चों any body radiates, मैं सिर्फ ये नहीं बोल सकता बच्चों, दिस इज नॉट करेक्ट कंप्लीटली, सिर्फ रेडिएट नहीं बच्चों, रिसीव ऑल्सो, रेडिएट्स as well as receives energy from its surrounding, ठीक है बच्चों। अब जो राइज एंड फॉल होता है बच्चों टेम्परेचर का आपका, आप लोग लिखते जाइए साथ साथ बच्चों, द राइज एंड फॉल ऑफ टेम्परेचर, किसी बॉडी का टेम्परेचर राइज किया या फॉल किया, इज ड्यू टू exchange of radiant energy with the surrounding body, ठीक है, with the surrounding body. The rise and fall of temperature is due to exchange of radiant energy from the surrounding body. Okay. अब एक क्वेश्चन बच्चों आपसे पूछा जा सकता है कि कोई भी बॉडी जो हीट रेडिएट कर रही है किन किन फैक्टर्स पे डिपेंड करता है उसका रेडिएशन बच्चों। तो द अमाउंट, ये मैं स्टार करके लिख रहा हूं बच्चों, द अमाउंट of radiant energy emitted per unit time depends upon, ये तीन चीजों पर डिपेंड करता है बच्चों। एक तो नेचर ऑफ एमिटिंग सरफेस, नेचर ऑफ एमिटिंग सरफेस से मतलब क्या है बच्चों, कोई बच्चा बताए व्हाट इज द नेचर ऑफ इमिटिंग सरफेस, मतलब व्हाट इज द मीनिंग ऑफ नेचर ऑफ एमिटिंग सरफेस बच्चों। नेचर ऑफ इमिटिंग सरफेस का मतलब क्या बच्चों, कोई बताइए स्मूथनेस। बच्चों। देखिए नेचर ऑफ एमिटिंग सरफेस का मतलब है कि
मतलब अगर मान लीजिए मैंने बोला कि बच्चों सरफेस स्मूथ है कि रफ है, सरफेस का मतलब अगर मैं बोलूं कि ब्लैक बॉडी है या नॉर्मल बॉडी है, तो ये जो अमाउंट ऑफ रेडिएंट एनर्जी डिपेंड करेगी बच्चों किस टाइप का नेचर है एमिटिंग बॉडी का, वो स्मूथ, रफ, ब्लैक बॉडी, परफेक्टली ब्लैक बॉडी, या बच्चों एक नॉर्मल बॉडी है, तो इस पर डिपेंड करेगा। फर्स्ट पॉइंट। सेकेंड पॉइंट, इट्स एरिया, कितने, मान लो एक छोटा सा रॉड है बच्चों, वो कितना ही मतलब आपको हीट एमिट कर पाएगा, लेकिन अगर एक बड़ी सी आप आयरन के पीस को अगर हीट करते हैं तो आपका हो सकता है पूरा रूम को वो गर्म कर दे बच्चों, ठीक है ना। इसीलिए क्वाइल होते हैं बच्चों, क्वाइल आपको लपेटे होते हैं कि वो बड़ा एरिया को कर देते हैं, ठीक है बच्चों। एरिया एंड इट्स टेम्परेचर। बच्चों अगर वो रूम टेम्परेचर पे ही होगा तो रेडिएंट एनर्जी का रेट उतना ज्यादा नहीं होगा ना बच्चों, लेकिन अगर वो हायर टेम्परेचर पे होगा तो ज्यादा होगा बच्चों, ठीक है ना। तो आप ऐसा भी बोल सकते हैं बच्चों, रेट ऑफ एमिशन ऑफ रेडिएंट एनर्जी इज फास्टर एट हायर टेम्परेचर एंड लोअर टेम्परेचर पे वो लेस होगा बच्चों। अब बच्चों अगला इंपॉर्टेंट पॉइंट, इफ ए बॉडी रेडिएट्स, ये भी डबल स्टार वाला पॉइंट है, सिंपल पॉइंट, आपको पता होगा ये सब बातें। इफ अ बॉडी radiates, if a body radiates more than what it absorbs, its temperature will क्या होगा बच्चों, राइज या फॉल? सोच के बोलिएगा। Rise. फिर से सोचिए। कूल करेगा। बच्चों मैंने बोला आपका आइस का सॉरी हॉट टी है आपकी, ठीक है बच्चों। हॉट टी क्या करेगी बच्चों, सोचिएगा बच्चों जो मैं बोल रहा हूँ। हॉट टी क्या करेगी बच्चों, रेडिएट मोर करेगी या लेस करेगी? व्हाट इट एब्जॉर्बिंग, इट रेडिएट्स मोर ना देन व्हाट इज ऑब्जॉर्बिंग। Yes, sir. तो बच्चों क्या होगा यहाँ पे, इस टेम्परेचर विल फॉल, ठीक है बच्चों। मेरी बात समझ में आई? इसमें बच्चे कंफ्यूज गलती कर देते हैं बच्चों, आपको लगता है अरे इसका टेम्परेचर राइज करेगा, कैसे राइज कर सकता है बच्चों, रेडिएट मोर कर रहा है, व्हाट दैट एब्जॉर्ब्स, इट टेम्परेचर विल फॉल, ठीक है बच्चों। और जस्ट वैसे वर्षा अगर मैं बोलूं तो बच्चों, if body radiates less, if a body radiates less than what it absorbs, तब क्या होगा बच्चों, its temperature will आप एब्जॉर्ब ज्यादा कर रहे हैं बच्चों। जैसे मैं एग्जांपल देता हूँ बच्चों को इसके लिए, कि कोई बच्चा ऐसा है बच्चों जो क्लास में बोलता ज्यादा है सुनता कम है बच्चों, उसका नॉलेज बढ़ेगा कि घटेगा बच्चों? बोलता ज्यादा है, आपस में बातें कर रहा है, फिर वो हो रहा है, उसका नॉलेज बढ़ेगा कि घटेगा बच्चों? घटेगा। और एक बच्चा है बच्चों जो सुन रहा है ज्यादा, बोल कम रहा है, मतलब रेडिएट्स लेस का मतलब बोलना कम है, बट एब्जॉर्ब मतलब सुन बहुत ज्यादा रहा है, उसका नॉलेज बढ़ेगा घटेगा बच्चों? सर उसका बढ़ेगा। नॉलेज बढ़ेगा ना। तो इसी तरह से बच्चों अगर रेडिएट आप लेस करोगे एंड एब्जॉर्ब मोर करोगे तो आपका टेम्परेचर बच्चों ऑलवेज राइज होगा, ठीक है ना। इतनी बातें क्लियर हुई बच्चों, इतनी बातें क्लियर है। अब बच्चों एक छोटा सा पॉइंट आता है कि मान लीजिए एक मेरा बॉडी है बच्चों, ठीक है ना। मैं आपको सारी थ्योरीज ऐसे कहानियों के फॉर्म में समझा दूंगा तो आपको सारी चीजें समझ में आ जाए, अदरवाइज
बुक में रेडिएशन पढ़ा ना आप लोगों ने बच्चों? रेडिएशन पढ़ा ना? किसी बच्चे ने ट्राई किया रेडिएशन पढ़ने का कि पढ़ा ही नहीं? इंसिडेंट है बच्चों पावर। ये किसी बॉडी पे कुछ पावर इंसिडेंट हो रही है, कुछ रेडिएशन फॉल हो रहे हैं बच्चों, इससे कुछ रिफ्लेक्ट हो रहे होंगे और कुछ इससे ट्रांसमिट हो रहे होंगे बच्चों, और कुछ ये एब्जॉर्ब कर ले रहा होगा। तो बच्चों ये तीनों किसके बराबर होंगे? पी इंसिडेंट में बोलूं तो मस्ट बी इक्वल टू पी एब्जॉर्ब्ड प्लस पी रेडिएटेड प्लस पी ट्रांसमिटेड। ऐसा लिख सकते हैं क्या बच्चों? हाँ ना बोले तो पी जो इंसिडेंट हो रहा है, टोटल पावर इंसिडेंट मस्ट बी इक्वल टू एब्जॉर्ब्ड प्लस रिफ्लेक्टेड प्लस ट्रांसमिटेड। ठीक लिखा क्या? देखिए तो अब बच्चों मैंने डिवाइडिंग बोथ साइड बाय पी आई, डिवाइडिंग बोथ साइड्स बाय पी आई, पी आई 1, पी ए बाय पी आई प्लस पी आर बाय पी आई प्लस पी टी बाय पी आई। तो आपने बोला सर ये सब जो टर्म आए वो क्या क्या हैं? पी ए पी आर पी टी बाय पी आई जो आप बोल रहे हैं सर, ये टर्म क्या है बच्चों? इस टर्म को हम लोग बोलते हैं, पी ए बाय पी आई को एब्जॉर्प्टिव पावर। क्या बोलते हैं बच्चों इसको? एब्जॉर्प्टिव पावर। इसको क्या बोलते हैं बच्चों? एब्जॉर्प्टिव पावर है रिफ्लेक्टिव पावर, रिफ्लेक्टिव पावर। इसको क्या बोलते हैं बच्चों? ट्रांसमिटिव, ट्रांसमिटिव पावर। तो तीनों का सम बच्चों है आपका 1 के इक्वल होता है। ठीक है बच्चों, लेकिन मैं बोल दूं यदि ये नॉर्मल बॉडी ना होके ब्लैक बॉडी होती है, अब इंपॉर्टेंट बात सुनिएगा बच्चों, ये नॉर्मल होके बॉडी ना होके ब्लैक बॉडी होती, क्या होता है बच्चों? इन केस ऑफ ब्लैक बॉडी, in case of black body, whatever radiation is falling on it, it will absorb all the radiation. तो बच्चों मैंने बोला कि पावर रेडिएटेड मस्ट बी इक्वल टू पावर ट्रांसमिटेड मस्ट बी इक्वल टू 0 बच्चों। किसके केस में होता है बच्चों? किसके केस में होता है बच्चों? पावर, इसको मैं एब्जॉर्ब, अच्छा इसका कुछ नाम देते हैं बच्चों स्मॉल लेटर से, तो आपको ज्यादा क्लियर हो जाएगा। इसको बोलते हैं ए बच्चों, इसको बोलते हैं आर बच्चों, और इसको टी बोलते हैं बच्चों, इज इक्वल टू 1। मैं कैसे याद रखता था पहले बच्चों? आर ए टी रैट, रैट इज इक्वल टू 1। आर से रिफ्लेक्टिव पावर, ट्रांसमिटिव पावर, एब्जॉर्प्टिव पावर, एब्जॉर्प्टिव पावर ए टी आर। तो अब आपने बोला फॉर ब्लैक बॉडी बच्चों जो होता है ना, वो आपका आर मस्ट बी इक्वल टू टी मस्ट बी इक्वल टू 0। इसको मैं कैसे बोल सकता हूँ आप लोग बताएंगे क्या बच्चों? जब मैंने बोला रिफ्लेक्टिव पावर होगा, जो ट्रांसमिटिव पावर होगा वो 0 होगा, तो ए क्या हो गया बच्चों? 1 हो गया। क्या क्यों ए 1 हुआ सर? सर ए प्लस आर प्लस टी की वैल्यू जो थी, रेट की वैल्यू आपने बोली थी 1 होगी, तो आपने वैल्यू पुट कर दिया बच्चों, आर की 0 टी की 0, तो ए की 1 होगी। क्या? तो एब्जॉर्प्टिव पावर अगर मैं बोलूं बच्चों, एब्जॉर्प्टिव पावर ब्लैक बॉडी के लिए बच्चों 1 होता है। तो इन केस ऑफ ब्लैक बॉडी एब्जॉर्प्टिव पावर इज 1, एब्जॉर्प्टिव पावर इज 1। बट जनरल बॉडी में, इन केस ऑफ जनरल बॉडी, जनरल बॉडी ए की वैल्यू बच्चों 1 से छोटी और 0 से बड़ी होती है। आपने बोला 0 से बड़ी और 1 से छोटी होती है जनरल बॉडी। रिफ्लेक्टिव एब्जॉर्प्टिव पावर ए is like this. Is it clear everyone? अब सुनिएगा, अगर मैंने ऐसा बोला कि ब्लैक बॉडी सारी चीजें जो पड़ रही है स्पेस को एब्जॉर्ब कर लेगी, तो ब्लैक बॉडी को गुड एमिटर क्यों बोला जाता है बच्चों?
गुड एमिटर क्यों बोला जाता है ब्लैक बॉडी को? क्योंकि ये तो कुछ एमिट नहीं कर रही है बच्चों, जो भी रेडिएशन फॉल हो रहा है सब के सब ये एब्जॉर्ब भी कर ले रही है, वो तो रेडिएशन एमिट कर नहीं रही है बच्चों। बट हम फिर भी बोलते हैं ब्लैक बॉडी इज गुड एमिटर एंड गुड एब्जॉर्बर। एब्जॉर्बर हम समझ गए, एमिटर को कैसे जस्टिफाई करोगे बच्चों? कुछ सोच के बोलो तो, हाउ यू जस्टिफाई सर? हाँ, ब्लैक बॉडी इज गुड एमिटर, मुझे भी लगे कि हाँ आपने सही बोला। ट्राई कर सकते हैं कोई भी, एनीवन वांट टू ट्राई? दे कैन। कि मैंने गुड एमिटर क्यों बोल दिया? एब्जॉर्बर तो सर हमें दिख रहा है, एब्जॉर्बर हमें दिख रहा है सर, बट आप एमिटर क्यों बोल रहे हैं इसको? तो सुनिएगा बच्चों ध्यान से, मैंने ऐसा थोड़ी बोला है कि ब्लैक बॉडी जो है बच्चों कुछ भी एमिट नहीं करेगा। मैंने बोला जो भी रेडिएशन फॉल कर रहा है उसको ये एमिट नहीं करेगा। सुनिएगा बच्चों, ये ब्लैक बॉडी है, मैंने ऐसा बना लिया, ये ब्लैक बॉडी है, इस पर जो भी फॉल कर रहा है उसको ये न तो रिफ्लेक्ट करेगा न आपको इसको ट्रांसमिट करेगा। इस सारे रेडिएशन जो फॉल कर रहा है एब्जॉर्ब कर लेगा इसको। तो वैसे ऐसा तो नहीं बोला बच्चों ये कुछ एमिट नहीं करेगा, सब कर लिया। अब इसका अपना तो कुछ टेम्परेचर होगा ना बच्चों, बिकॉज ऑफ इट्स ओन, बिकॉज ऑफ इट्स ओन एनर्जी, एंड सिंस टेम्परेचर 0 केल्विन से ज्यादा है बच्चों, तो ये तो रेडिएशन एमिट कर ही सकता है, इसमें तो कोई प्रॉब्लम नहीं। तो बच्चों ये बाहर से गिरने वाली रेडिएशन के वजह से, बाहर से गिरने वाली रेडिएशन को आपका रिफ्लेक्ट या ट्रांसमिट नहीं करेगा, लेकिन अपने खुद के एनर्जी की वजह से, क्योंकि इसकी कुछ एनर्जी हो चुकी है बच्चों ना, कि अपने खुद के पावर की वजह से ये बच्चों रेडिएट कर सकता है। बिकॉज इसकी एनर्जी जो है बहुत हाई है बच्चों, और जिसकी एनर्जी बच्चों हाई होती है, टेम्परेचर अगर ग्रेटर देन 0 केल्विन है तो इट विल एमिट रेडिएशन। तो ये खुद की वजह से एमिट करता है बच्चों, और खुद की वजह से जो एमिट करता है बच्चों, इसी को लेकर बोलते हैं बच्चों ब्लैक बॉडी इज गुड एमिटर एंड गुड एब्जॉर्बर। ब्लैक बॉडी इज गुड एमिटर एंड गुड एब्जॉर्बर। ब्लैक बॉडी इज गुड एमिटर एंड गुड एब्जॉर्बर। अब सुनिए बच्चों, आप ब्लैक बॉडी बना कैसे सकते हैं बच्चों? ब्लैक बॉडी बनाने का तरीका है क्या? तो एक साइंटिस्ट है बच्चों, फेरी, फेरी नाम के साइंटिस्ट ने बच्चों एक स्ट्रक्चर तैयार किया जो ब्लैक बॉडी के तरह बिहेव कर सकता है। कैसा बनाया था ना, देखना ध्यान से, पूरा ही मिट जाता है। देखिए बच्चों, उन्होंने कुछ ऐसा स्ट्रक्चर बनाया था, इस टाइप का स्ट्रक्चर बनाया था फेरी ने। ये फेरीज ब्लैक बॉडी बोलते हैं इसको बच्चों, फेरीज ब्लैक बॉडी। तो ये यहां से इंसिडेंट हुआ बच्चों, रिफ्लेक्ट होके यहाँ गया, वापस यहाँ आएगा, ये बच्चों इस तरह से घूमता रहेगा इसमें ना। तो मैंने बोला कि अगर मान लीजिए P0 इंसिडेंट हुआ था फोटॉन्स इसके अंदर, ये अच्छा ये जो होता है ना बच्चों, ये पेंटेड होता है बच्चों, ये जो होता है इसके अंदर का पोर्शन जो होता है वो ब्लैक पेंट या चारकोल ब्लैक से, इसको बोलते हैं चारकोल ब्लैक बच्चों। ब्लैक पेंट इज नॉट एज एफिशिएंट, बट जो आपका चारकोल होता है ना बच्चों, आपने क्या किया बच्चों, जो रेडिएशंस फॉल हुई, मैंने बोला बच्चों टकराने के बाद इसका कुछ पोर्शन
इसका कुछ पोर्शन बच्चों आपका यहाँ पर टकरा के वापस लौटा। ये कितना पोर्शन लौटेगा? तो पी नॉट टकराया था और कुछ पोर्शन। अब ये कैसे निकालोगे बच्चों? तो आप बोलोगे सर पी ए बाय पी नॉट इज इक्वल टू, हमने बोला था ए होता है, देखिए फॉर्मूला पी ए प्लस बाय पी नॉट को मैंने वहां पे बच्चों पी आई बोला था। पी आई जो इंसिडेंट वाला है, अगर आप इसको ऐसा लिखना चाहते हैं आई, तो आप लिख सकते हैं। देखिए ध्यान से, आप पी ए को अप्रोक्सीमेटली पी आई लिख सकते हैं। तो पावर एब्जॉर्ब बटे पावर इंसिडेंट या पी नॉट, इसको तो एब्जॉर्बिव पावर हमने बोला था बच्चों। तो अब यहां से मैं ऐसा लिखूं क्या? देखिएगा पी ए इज इक्वल टू ए टाइम्स ऑफ पी नॉट, पी ए इज इक्वल टू ए टाइम्स ऑफ पी नॉट। अब आप देखिए यहां से जो टकरा के वापस लौटा बच्चों, अब इसके पास कितना फ्रैक्शन एनर्जी बचा हुआ है? तो आप बोलेगा सर पी ए माइनस, सॉरी पी नॉट माइनस ए पी नॉट ना, मेरे पास समझ रहे हैं आप? अब पहले पी नॉट था बच्चों, अब इसने कुछ ए पी नॉट लिखा, तो यू कैन राइट सिंपली कि यहाँ सर पी नॉट कॉमन लेके 1 माइनस ए कॉमन, एक रिफ्लेक्शन के बाद पावर 1 आया है, nth रिफ्लेक्शन के बाद पी नॉट 1 माइनस ए टू द पावर n माइनस पी नॉट इज इक्वल टू पी नॉट माइनस पी नॉट, ये पी एब्जॉर्ब टोटल हुआ बच्चों, ठीक है ना? पी एब्जॉर्ब हुआ। तो आप बोलेंगे सर अगर मैंने ये निकाल लिया तो इसकी वैल्यू बच्चों आपका अगर परफेक्टली ब्लैक बॉडी होती तो क्या होता? तो ये अल्टीमेटली बच्चों दिस विल कम्स टू पी नॉट, जो कि आपका एब्जॉर्प्टिव पी ए के बराबर हो जाएगा बच्चों ने यहाँ पे एब्जॉर्ब। इसको मैं थोड़ा सिंप्लीफाई करता हूँ, देखिए ध्यान से। तो बच्चों आपने बोला यहाँ तक क्लियर है बच्चों? देखिए तो पहले यहाँ Yes, तक क्लियर है? पहले सारी बातें मैंने बोली कि फेरी ने क्या किया था, एक ऐसा स्ट्रक्चर बनाया था बच्चों जिसमें से जो भी इंसिडेंट हो रहा है बच्चों उसका पोर्शन उसी के अंदर बच्चों आपका रिफ्लेक्ट होकर फाइनली बाहर नहीं जाएगा। इस टाइप का स्ट्रक्चर था बच्चों कि वट एवर इज फॉलिंग दे विल गो मल्टीपल टाइप ऑफ रिफ्लेक्शन, और इस मल्टीपल रिफ्लेक्शन की वजह से दे विल स्टे इनसाइड दिस वन, एंड दिस चीज को फेरी ब्लैक बॉडी बोलते हैं, ठीक है ना? अब हमने बोला बच्चों फेरी ब्लैक बॉडी के लिए आप कैलकुलेशंस कर सकते हैं। तो जब आपका कैलकुलेशन करके फाइनल आएगा बच्चों पी एब्जॉर्ब, तो आपने बोला पी नॉट सर इंसिडेंट हुआ था और अंदर में ये आपका सिचुएशन है दिस, ठीक है? देखिए तो यहाँ पे ए इफेक्टिव क्या होगा? एब्जॉर्प्टिव पावर की बात करें तो पी एब्जॉर्ब बाय पी नॉट ना, तो पी नॉट विल बी कैंसिल 1 माइनस ए टू द पावर होल। अच्छा यहाँ पे ना एन होल आएगा बच्चों, मैंने गलती किया है, क्योंकि अगली बार में बच्चों ये हो जाएगा 1 माइनस ए स्क्वायर, देन 1 माइनस ए इज दिस विल बी गो लाइक दिस, तो 1 माइनस ए टू द पावर एन, ठीक है? और ये आपका बच्चों रेशियो पूछा जाता है, तो आप बोलेंगे सर रेशियो जो होगा आपका, अगर मैंने बोला एब्जॉर्प्टिव पावर आपको दे दिया है वैल्यू मान लीजिए कुछ भी, तो यू कैन फाइंड द वैल्यू ऑफ दिस। तो ये है बच्चों फेरी ब्लैक बॉडी। पहले फेरी ब्लैक बॉडी ने क्या किया, एक ऐसा स्ट्रक्चर बनाया जिससे जो भी लाइट इंसिडेंट हो रहा है बच्चों वो अंदर ही सर आपका, आपने स्क्वायर क्यों किया? हाँ अच्छा स्क्वायर नहीं, ये पावर एन हो जाएगा बच्चों, ये स्क्वायर नहीं ये पावर एन है। एन क्योंकि अब ये एन टेंड्स टू जितना ज्यादा होगा बच्चों उतना परफेक्टली ब्लैक बॉडी के नियर रहेगा ना बच्चों, क्योंकि जो देखिए अब इसको बहुत, अगर आपने बोला ये वैल्यू जो हुई बच्चों, मान लीजिए इतनी नेग्लिजिबल स्मॉल हो जाएगी बच्चों, इस पर पावर ज्यादा बढ़ते जाएगा तो ये पी नॉट के बराबर हो जाएगा ना बच्चों। तो जो भी इंसिडेंट हो रही है सबको एब्जॉर्ब कर लेगा वो क्या, हाँ सर। फर्स्ट कोलिजन के लिए बच्चों 1 माइनस ए था ना, देखिए
कोलिजन के बाद जो एब्जॉर्प्टिव पावर आपने लिखी थी ए पी नॉट, तो पहले पी नॉट थी बच्चों, अब ए पी नॉट, तो आपका रिमेनिंग ए पी नॉट वन माइनस ए पी नॉट हुआ। तो अब आपने नेक्स्ट किया तो उसका स्क्वायर, नेक्स्ट किया तो उसका क्यूब, एंड nth के बाद दिस इज द एक्सप्रेशन। इट इज फाइनल क्लियर। हाँ सर। चलिए बच्चों, अब बात करते हैं बच्चों हम लोग एमिसिविटी की। व्हाट इज एमिसिविटी? ये सब टर्म है बच्चों, क्योंकि मुझे स्टीफन लॉ से पढ़ने पहले सब टर्म समझाना पड़ेगा, अदरवाइज आपको मैं बोलूंगा ई एमिसिविटी, आप समझ ही नहीं पाओगे व्हाट इज ई सर। एमिसिविटी में हमने क्या किया, दो बॉडी ले लिया बच्चों, एक बॉडी लिया वन, और मैं दूसरा बॉडी किसी भी टाइप का सेव का ले सकता हूँ बच्चों। मैंने इसलिए आइडेंटिकल नहीं लिया, दिखने में अलग अलग दिखे। बॉडी टू, इनका टेम्परेचर बच्चों हमने जो रखा है मैंने बोला ये बच्चों आपका इसका ये जनरल बॉडी है बच्चों, ये जनरल बॉडी है, और ये फेरी वाला बनाया हुआ परफेक्टली ब्लैक बॉडी, पी बी बी लिखो, परफेक्टली ब्लैक बॉडी है बच्चों, बॉडी टू परफेक्टली ब्लैक बॉडी है। तो एक टेम्परेचर टी पर सेम टेम्परेचर हमने रखा है बच्चों, ठीक है ना, टेम्परेचर दोनों बॉडी का सेम रखा है, एक जनरल बॉडी लिया, परफेक्टली ब्लैक बॉडी लिया हमने, इसने कुछ एमिट किया रेडिएशंस, तो इससे बच्चों हमने बोला जो लेट इट बी, इसका नाम हमने ई दे दिया बच्चों, ठीक है ना, एंड ब्लैक बॉडी ने जो एमिट किया बच्चों उसको हमने दिया ई नॉट। तो आपका जो ई बाय ई नॉट है, मैं आपको जनरल टर्म में समझा दूंगा, पहले मैं आपको बेसिक समझा देता हूँ, तो जो आपको डेफिनेशन लिखने में आसानी हो जाएगी। एमएससीवीटी कहलाता है बच्चों ई बाय ई नॉट का रेशियो। तो आपको डेफिनेशन कैसे लिखना जरा बताएंगे क्या? व्हाट इज एमिसिविटी? व्हाट इज ई बच्चों? ये एमिसिव पावर है। एमिसिव पावर क्या होता है बच्चों? अभी तक मैंने एमिसिव पावर बताया नहीं बच्चों आपको। पावर जो होता है बच्चों आपका ये होता है एमिसिव पावर, नाम तो पावर है बच्चों, सुनिएगा ध्यान से, एमिसिव पावर, बट ये एक्चुअल में पावर नहीं है बच्चों। एमिसिव पावर ये है पावर पर यूनिट एरिया बच्चों। कोई भी बॉडी जो पावर एमिट कर रही है, पी एमिटेड डिवाइडेड बाय एरिया, इसको एमिसिव पावर बोलते हैं बच्चों, ठीक है ना। तो एमिसिव पावर ऑफ ए बॉडी एट टेम्परेचर टी अपॉन, इसको मैं डेफिनेशन के फॉर्म में लिखा हूं बच्चों, एमिसिव पावर ऑफ बॉडी एट टेम्परेचर टी अपॉन एमिसिव पावर ऑफ बॉडी की जगह पे बच्चों आप ब्लैक बॉडी लिख देना, परफेक्टली ब्लैक बॉडी, परफेक्टली ब्लैक बॉडी एट टेम्परेचर टी। दिस रेशियो इज नोन एज स्मॉल ई, ठीक है बच्चों। स्मॉल ई क्या है? रेशियो ऑफ एमिसिव पावर ऑफ द बॉडी एट टेम्परेचर टी अपॉन एमिसिव पावर ऑफ द बॉडी एट टेम्परेचर, परफेक्टली ब्लैक बॉडी एट टेम्परेचर टी, दोनों का रेशियो है बच्चों, ठीक है ना। अब बात करते हैं हम लोग किरचॉफ्स लॉ। अब यहीं से किरचॉफ्स लॉ बच्चों आता है। इसका स्टेटमेंट लिखते हैं बच्चों, पहले देखिए, इट स्टेट दैट, तो बच्चों क्या है एमिसिविटी? एमिसिविटी रेशियो है दो चीज का, किसका किसका बच्चों? ई बाय ई नॉट का। व्हाट इज ई? ई है एमिसिव पावर ऑफ द बॉडी एट टेम्परेचर टी अपॉन एमिसिव पावर ऑफ परफेक्टली ब्लैक बॉडी एट टेम्परेचर टी। हमने सेम टेम्परेचर पे दो बॉडी लिया है, एक जनरल है, एक परफेक्टली ब्लैक बॉडी है। जनरल बॉडी जो एमिट कर रही है उसको ई, परफेक्टली ब्लैक बॉडी जो एमिट कर रही है उसको ई नॉट।
तो रेशियो E by E नॉट इज नोन एज एमिसिविटी। ठीक है बच्चों, अब मैं बोलूंगा किरचॉफ्स लॉ। इट स्टेट्स दैट, बच्चों आप लोग बोर तो नहीं हो गए इस चैप्टर में? थोड़ा थ्योरी ज्यादा है इसमें। दैट एनी टू बॉडीज, अब बच्चों थ्योरी खत्म हो गया, बस मैंने बोला ना आज की पूरी क्लास थ्योरी में ही चली जाएगी। अब अगली क्लास में आपको बहुत अच्छा लगेगा, सब सारी चीजें थ्योरी क्लियर है हमारी, अगली क्लास बहुत स्मूथली हो जाएगी बच्चों। इट स्टेट दैट एनी टू बॉडी, हाफ एन आवर में अगली क्लास खत्म हो जाएगी, ठीक है ना? क्योंकि अब आपको पता है बच्चों, अगर मैं dq by dt बोलूं तो प्रोपोर्शनल टू फोर्थ पावर ऑफ टेम्परेचर स्टीफन्स लॉ हो गया बच्चों। एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन के प्रोपोर्शनल होता है तो ए एमिसिविटी के प्रोपोर्शनल होता है एमएसी ए स्मॉल ई सिग्मा टी टू पावर 4। तो ये हो गया स्टीफन्स लॉ, यहीं से बच्चों न्यूटन्स लॉ आ जाएगा। स्टीफन न्यूटन्स के बाद ये चैप्टर ही कंप्लीट हो जाता है बच्चों, ठीक है ना? तो अब यहाँ पे मेनली था बच्चों आपको टर्म्स को समझना कि एब्जॉर्प्टिव पावर क्या है, रिफ्लेक्टिव पावर क्या है, ट्रांसमिटिव पावर क्या है, ब्लैक बॉडी क्या होता है, क्या ब्लैक बॉडी जो रेडिएशन इंसिडेंट हो रहा है उसको एमिट करेगा? नहीं बच्चों, सबको पहले एब्जॉर्ब कर लेगा कंप्लीटली एंड अपना जो है उसके वजह से वो रेडिएशन एमिट कर पाता है। तो एमिटर गुड, एब्जॉर्बर गुड। अब ई क्या है बच्चों? परफेक्टली ब्लैक बॉडी किसी टेम्परेचर पे कुछ जो रेडिएशन निकाल रही है बच्चों, एंड एक नॉर्मल बॉडी। तो ई बाई ई नॉट इज बेसिकली एमिसिविटी। एंड नाउ किरचॉफ्स लॉ। Kirchhoff's law states that for any two bodies at same temperature, at same temperature, will have equal ratio of emissive power to absorptive power. Emissive power to absorptive power. पावर, एब्जॉर्प्टिव पावर। अब इसका मतलब क्या है बच्चों? देखिए ध्यान से, मान लीजिए हमने दो बॉडी ले लिया, एक बॉडी ऐसा लिया, एक बॉडी कुछ ऐसा ले लिया बच्चों, ठीक है ना? टेम्परेचर हमने मेंटेन कर दिया T, इस इररिस्पेक्टिव ऑफ शेप, साइज, ज्योमेट्री। हमने एक बॉडी लिया जिसका जो एमिट कर रहा था E1, एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन A1 या एब्जॉर्प्टिविटी A1, E2, A2, E2 एमिट कर रहा है, इसको मैं बाहर लिखूंगा। और A2 इसका एब्जॉर्प्टिव पावर है बच्चों। तुम्हें इसके अकॉर्डिंग किरचॉफ लॉ क्या बोलता है बच्चों? इक्वल रेशियो ऑफ एमिसिव एब्जॉर्प्टिव पावर, एमिसिव पावर को E1 by A1 is equal to E2 by A2. This is simple statement of absorptive power. Sorry, Kirchhoff's law. Kirchhoff's law का स्टेटमेंट सिंपल यही है बच्चों। अब अगर मैं बोलूं कि मान लीजिए बच्चों दूसरा वाला बॉडी आपका ब्लैक बॉडी हो गया, दूसरा वाला बॉडी ब्लैक बॉडी हो गया, तो आप बोलेंगे सर E1 by A1 तो एज लिखिए आप, बट E2 by A2 को आपने सर एक काम करिए, ब्लैक बॉडी के लिए हमने बोलिया सर E1 by A1। अच्छा पेंसिल डिस्चार्ज हो गई, एक सेकंड। E1 by A1 बच्चों, एक मिनट में पेंसिल की वजह से लिख नहीं पा रहा था। E1 by A1 को मैं ऐसा लिखा बच्चों, अगर ब्लैक बॉडी के लिए लिखना है मुझे, देखिएगा ध्यान से, तो ब्लैक बॉडी के लिए मैंने बच्चों E नॉट ले लिया क्योंकि आपको कंप्लीटली एब्जॉर्ब कर लेता है ना। A1 हो गया क्या बच्चों? तो आप E1 by E नॉट को A1 भी लिख सकते हैं बच्चों। अब A1 क्या था आपका, जरा याद करिए तो, व्हाट इज A1?
एब्जॉर्प्टिव पावर था बच्चों क्या, और यही तो आपका एमिसिविटी का भी डेफिनेशन था बच्चों। तो एमिसिविटी एब्जॉर्प्टिविटी सब ए इज इक्वल टू ई हो जाता है ब्लैक बॉडी का। मैं कभी कभी यूज करूंगा बच्चों इसको कि ब्लैक बॉडी है इसलिए ई इज इक्वल टू ए या ए इज इक्वल टू ई। तो इसका मतलब क्या है बच्चों, गुड एमिटर्स आर गुड एब्जॉर्बर्स। देखिए ये एब्जॉर्बिटी है एब्जॉर्बर के लिए बच्चों, एब्जॉर्प्टिविटी जितनी है उसकी एमिसिविटी उतनी है बच्चों। तो ये आपका बताता है कि ब्लैक बॉडी आर गुड एमिटर एंड गुड एब्जॉर्बर। तो गुड एमिटर्स ये क्या बताता है बच्चों, गुड एब्जॉर्बर्स आर, और ये आप लोग के लिए वैलिड है बच्चों, गुड एब्जॉर्बर्स आर गुड एमिटर। ठीक है बच्चों, गुड एमिटर। तो ये सारी चीजें हम लोग बच्चों अब देख चुके हैं। अब आपका यहाँ से स्टार्ट होता है स्टीफन्स लॉ, क्योंकि उसको जो मुझे बता के न्यूमेरिकल भी कराना है। तो आज के लिए इतना ही रखते हैं बच्चों हम लोग। किरचॉफ्स लॉ को आप अच्छे से समझिएगा कि एमिसिव पावर बाय एब्जॉर्प्टिव पावर का रेशियो आइडेंटिकल होगा दोनों बॉडी के लिए। अगर एक ब्लैक बॉडी हो बच्चों तो एमिसिव पावर और एब्जॉर्प्टिव पावर का रेशियो ई नॉट हो जाता है, क्योंकि एब्जॉर्प्टिविटी 1 होती है उसके लिए। एब्जॉर्प्टिविटी 1 होती है तो बच्चों रेशियो आ गया E1 बाय A1 ई नॉट। और ई नॉट आपको बच्चों आपने बोला था E1 बाय ई नॉट जो है, देखिए ध्यान से, ई बाय ई नॉट जो है बच्चों, ई बाय ई नॉट आपका एमिसिविटी कहलाया था, और यहाँ पे ई बाय ई नॉट आपका A1 कहला गया। तो A1 ई के इक्वल है बच्चों क्या, एब्जॉर्प्टिविटी जो है एमिसिविटी के इक्वल है, मतलब गुड एब्जॉर्बर्स और गुड एमिटर। ठीक है बच्चों, तो ब्लैक बॉडी के लिए ऐसा बोला जाता है। तो आपको ब्लैक बॉडी के लिए एक स्टेटमेंट पूछा जा सकता है कि आर ब्लैक बॉडी गुड एमिटर, यस गुड एब्जॉर्बर। तो एमिसिविटी क्या होती है बच्चों, एमिसिविटी एब्जॉर्प्टिविटी के बराबर हो जाती है बच्चों, और सब बॉडी में ऐसा नहीं होगा। ठीक है ना, चलिए बच्चों नोट कर लीजिए। ये बात क्लियर है बच्चों, क्या हमने स्टार्ट किया था कहाँ से, मैं एक बार थोड़ा सा क्विक रिव्यू करा देता हूँ आपको बच्चों। हमने रेडिएशंस की प्रॉपर्टीज के बारे में स्टार्ट किया था बच्चों कि फास्टेस्ट है, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स है, मीडियम की रिक्वायरमेंट नहीं होती है, और ये आपका इंटरमीडिएट मीडियम को हीट नहीं करता है। रेडिएशन आपका जो इंसिडेंट हो रहा है और जो एमिट हो रहा है उसके बेसिस पे हम बता सकते हैं कि बच्चों वो हीट हो रहा है कि कूल हो रहा है। जैसे टेम्परेचर बढ़ाओगे बच्चों, जो आपका नॉर्मल बॉडी थे जो इंफ्रारेड रेडिएशन एमिट कर रहा था, अब वही जाके बच्चों विजुअल रीजन में रेडिएशन एमिट करने लगेंगे। प्रीवोस्ट की थ्योरी थी बच्चों कि कोई बॉडी जिसका टेम्परेचर 0 केल्विन से ज्यादा होगा बच्चों, वो बॉडी आपका हीट रेडिएट करेगा। वो अलग बात है कि बच्चों वो रेडिएशन आपका यूवी रीजन में हो सकता है, आईआर रीजन में हो सकता है, आप यू कैन नॉट सी, बट उसकी वजह से ही बच्चों जो रेडिएशन वो एमिट कर रहा है और सराउंडिंग से जो एब्जॉर्ब कर रहा है उसी की वजह से उसका टेम्परेचर राइज या फॉल होता है बच्चों। मैंने यहाँ पे कंपेयर किया था, जो पावर इंसिडेंट होती है बच्चों वो तीन चीजें हो सकती है, रिफ्लेक्ट हो सकती है, ट्रांसमिट हो सकती है, और आपका एब्जॉर्ब हो सकती है। तो इंसिडेंट जो होता है एब्जॉर्ब प्लस रिफ्लेक्टेड प्लस ट्रांसमिटेड के बराबर होता है बच्चों। इसका रेशियो हमने लिया था एब्जॉर्प्टिव पावर, रिफ्लेक्टिव पावर, ट्रांसमिटिव पावर, और यहाँ से ब्लैक बॉडी को बच्चों हमने E इज इक्वल टू ए प्रूव किया था बच्चों। दिस इज ऑल अबाउट टूडेज क्लास। ठीक है बच्चों, और कुछ टर्म हमने डिफाइन किया था, एमिसिविटी ई बाय ई नॉट। ई क्या है बच्चों, जनरल बॉडी जो एमिट करती है, जो एमिसिविटी रेशियो है ई बाय ई नॉट का। एमिसिव पावर ई क्या है, एमिसिव पावर ऑफ ब्लैक बॉडी जो नीचे रहेगा बच्चों, और नॉर्मल बॉडी ऊपर रहेगा, ई बाय ई नॉट। ई मीन ये ई बाय ई नॉट बराबर हो जाता है बच्चों किसके, एब्जॉर्प्टिव पावर एमिसिव पावर के इक्वल होता है। ठीक है बच्चों, क्या आज के लिए इतना, थैंक यू बच्चों। थैंक यू सर।